to Sindh in their opening game. A high-scoring encounter left much to be desired from their batsmen. Oh, he's gone. He's dragged that one from outside off stump. The home team will be up against a tough opponent, one that fights to the last ball. Could we see a turn of events? Well, earlier on, it's time for toss in the middle, and it's Ali Yunus. Defending champions Khyber Pakhtunkhwa are taking on the home side Northern for the game number 6 of Kingdom Valley National T20. I've got the two captains, Ali Imran for Northern, Khalid Usman for Khyber Pakhtunkhwa, and Professor Anis is the match referee. And let's go, boys. Khalid Usman is going to flip the coin. It's a tail, G. It's a tail. He has won the toss. KP Khalid Usman टॉस जीत गए. खालिद क्या करेंगे और क्यों? बैटिंग करेंगे. क्या खास वजह लग रही है आपको? वजह यही है कि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो 5 मैचेस में चेज नहीं हुआ, तो वही मोमेंटम लेके जाएंगे हम भी. अब क्या खास बात है आपकी टीम के अंदर कि कल भी हमने देखा कि मैच हारा हुआ जीत गए, तो क्या खास बात लगती है आपको अपनी टीम की? बस यही है कि फाइट करते रहे आखिर तक, और लड़कों को यही बोलता रहूं कि बस फाइट करना है, रिजल्ट जो भी हो. आपकी अपनी इंजरी क्या सुनाए? कल आपको बॉल लगा था तो आप कैसा फील कर रहे हैं? ठीक है माशाल्लाह, ठीक है. अब इधर चलिए, ऑल द बेस्ट. और जाते जाते अपनी टीम चेंजेस अगर कोई है तो बता दीजिए. आज आसिफ अफरीदी नहीं खेला, उसको थोड़ा सा बुखार हुआ है, तो उसकी जगह मास खान खेल रहा है. राइट, ऑल द बेस्ट खालिद. थैंक यू. इमरान, बॉलिंग फर्स्ट, क्या ये परेशानी वाली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं. टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि टॉस आपके जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है आपको कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए. तो टॉस इज टॉस. क्योंकि जो ट्रेंड हमें इस टूर्नामेंट में देखने, जो बैटिंग फर्स्ट टीम वो जीत रही है, तो क्या ये परेशानी वाली बात हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है. देखें, ज़रूरी नहीं है कि बैटिंग फर्स्ट ही जीते. मैच होगा, खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे. अब यंग साइड है, आप उमर अमीन को तो डेफिनेटली मिस कर ही रहे हैं, तो क्या सीखा है हमने पिछले मैच से कमिंग इनटू दिस गेम? लाजमन सी बात है, एज अ यंगस्टर मिस्टेक्स आप करते हो, और डे बाय डे इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी. तो आप सीख रहे हैं, और आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि मैं अपनी गलतियों को मिनिमाइज करूँ. टीम चेंजेस आपकी? जी बिल्कुल, टीम में चेंजेस हैं. रुहेल नज़ीर वापस आए हैं. ही वाज इल इन द लास्ट मैच, बट ही इज़ बैक इन दिस साइड. और हुरैरा आए हैं ज़ीशान मलिक की जगह. तो 2 चेंजेस इन द टीम. राइट, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम. थैंक यू सो मच. Right, you heard from the captains. The news is that KP's captain Khalid Usman has won the toss and decided to bat first. So when you talk about size,
1169, 27 is average. 650s, no hundreds just yet. 113 is the strike rate. Prolific last year in the same competition. In fact, the top run scorer. And that's Muhammad Haris, known as Google, Mr. Google. Early days in his career, 16 games, 297 runs, just the 24 average. But he can be a match winner on his day. Sohail Tanveer, the Globetrotter. He's played franchise cricket all over the world. 383 wickets. Plenty of wickets in this format for the experienced man from Rawalpindi. Right behind his back, which would be long on, is his stand, called Sohail Tanveer stand. KP liked to bat, and they're all set and ready. Match 6, all set and ready. Faisal Afridi says play. I just want to see the side chasing. Putting a little more mind and planning into it. So close yet so far. Now starting off with pretty dry, so it should be the same for both the teams. Just getting a little slower though. But we saw in the first game, spinners did come into play quite a lot. On their Shad enclosure or something. Pavilion, I think. I think when Darren Sammy was still playing, when the stadium was named after him. But the Brian Lara. Red Bull gives you wings.
Yeah, very few active players. Indeed. There's one stand over here which is Imran Khan enclosure. That can be used by many. Imran Khan Jr., Imran Khan Senior. This Sohail Tanveer's wickets against Sindh. He got Sharjeel out, then down at long on. That's the moment where he broke that partnership. That's a good catch taken. He's got that experience, and I clearly remember in the previous match was brought in when Northern was in trouble. They were facing a big partnership from Sindh. He bowled that one over and broke it. They didn't win the game, but are very useful. I'd say an all-rounder. First class 100. This tells you that he has the ability to stay out there, hit it big as well. Again, direct hits. No. It's 2 for no loss. Helmet! Hello everyone. Mid off कहाँ है? 2 for none. Interesting move from Northern. Seen the behavior of the pitch. They're going with Mehran Mumtaz from the pavilion end to start off the proceedings. Mehran really had a good outing in the first game as well. More importantly, he's been touted around as a very, very promising prospect for bigger and better things. Keep an eye on him. He's got lovely flight and loop. Got a slip in. Oh, that's criminal. Spinner bowling a no ball. You build him up. What does he do? Bowl a no ball. Unheard of from the spinners. You apologize and you put the mic down. It's a big no ball. And that's a wide one. And also 5 wides. Trying to fire that in now. Things are going wrong. He needs to calm down a little bit. Just a little bit. Now then, talk about his loop. He's really fired it through. He slip out of his hand. The brand new Rohail Nazir been put to test. He couldn't do nothing about it. That is very, very sloppy from the youngster. Down the wicket, Haris goes big. Vacant zone, so he's safe. Will it go and trickle to the boundary? Yes, it does. That's not a bad ploy from KP, attacking the youngster straight away. 10 off the first ball. Haris realizing the situation, reading it quite well, knowing that the bowler is under pressure. Once again, another dart. And Haris hit it on the up. New ball, so it did come on a little bit better. Didn't get all of it, but enough to earn him a boundary. आप सीधा रोली भाई थोड़ा सीधा. The man at wide mid wicket now, cow corner. ये चीज.
It's a bit funny. You get a score of 147, you defend it. You get a score of 190, you defend it. What is gettable when you're chasing? Abdur Rahman, prolific coaches, especially in the domestic arena, even the PSL, the Multan Sultans, and he's had a very good track record, good rapport with the players, understands their requirements, knows their strengths, abilities. So important for a coach, especially a big name, to understand Yes, lad. and know that the youngster they're training is not him. It's imperative to understand their ability and then probably polish that. He's superb, whatever we've seen of him. Good work from the skipper. He's taking the scoring to just a single. Make a good point about the coach. The modern day coaching is a complete science now. So much misconception about what's the role of a coach. It varies a lot, and it covers a lot of aspects of his troops. That does include their game and also the lifestyle, what they do outside of the game. And he picked it up in the first go. There would be trouble. You can see a clear intent here. The running between the wicket, within the circle, that's there. Good calling, good understanding between the two batsmen. And then at the same time, attacking the youngster straight away. It's gone for 13 already in the over. And again, trying to make room just to play it over extra cover. 15 for no loss. Two changes for Northern. Ruhail Nazir has come back in and will strengthen the batting. Lackluster Zishan Malik has been benched for Herrera, and the very, very exciting prospect. Sohail Tanvir, we saw his wickets in the previous game. His role varies for his team, especially with the new ball. When he comes, he's expected to make the breakthrough like he did. Knocked over Sharjeel in the first over. Then when the onslaught is on towards the middle or later part of the innings, job is to come on and stem the flow of runs, ideally by picking up the wickets. Faisal Afridi, and again his 27th T20. Tearaway fast bowler in his time. Career was cut short through injuries. Second no ball from Northern in just a span of 2.1 overs. First from Mehran Mumtaz, the spinner, and now Sohail Tanvir. Let's have a look. Yeah, it's clearly outside the line. So another free hit. Another interesting stat is that 4 no balls have been bowled up till now in the National T20 this season, all by left armers. They've got to control run-ups. Nasir Hussain is standing in his 11th T20, along with Faisal Afridi in his 27th. Full toss, free hit, and rightly dealt with. Good use of the bottom hand. These low full tosses used to be a difficult delivery to hit. Not anymore. The batters set themselves deep in the crease, and the bats
are big and heavy these days, even towards the bottom of it. And still clears the fence. Haris, he's looking for that breakthrough. Important innings for Haris because a lot of eyeballs on him. Made it to the national squad. He's got a lot of attention, and his batting is a key component of his game. Wide. Extras are now just piling on in just 2.2 overs. And quite a few of them. 5 no balls in the first over from Mehran. In fact, 5 wides. And then a no ball from him. Sohail Tanveer bowling a wide and a no ball. So 6 wides and 2 no balls. Already 8. It's not good discipline there from the Northern. Coming back off the back of that defeat, they really needed to come out of their straps and start really well. They haven't done that. Only big shot, boys. Usman Khan Shinwari I haven't really seen a lot of him in recent times. Another very talented bowler. He's got the pace. Just that he's been in and out over performance and sometimes injuries. Well bowled, Sohail bhai. Beautiful boys, beautiful boys. Ye cheese, Harry. Lovely boys. Ali Imran, another captain in the making. Not just for Northern, he has the ability. The way he handled his team the other day, the way he speaks about his team, about cricket, and he doesn't shy away from learning. He shows those elements in him. He's a good batsman. He doesn't bowl much now. Also very relaxed demeanor about him. Presence, some certain air of calmness about him. Very important for a leader. And he's always single Yeah, there. boys. Excellent, boys. The bottom of his bat. No timing whatsoever. As the days wore on, it's become harder and harder to hit through the line on this pitch. It was possible in the morning, but towards the back end of the second innings, started to get stuck in the pitch. There was some turn. Likely that we're going to see more and more of that. So batters would need to apply, would need to choose the right options and right scoring areas according to what the pitch is offering them. Great hour, boys. Big change, boys. 25 for no loss. Chalo, boys. पानी ठंडा है ज़्यादा पानी ठंडा है Salman Irshad, the bowling change. He'll take on from the far end. T20 career, 26 game. 4 for 30 is his best. You talk about this tournament, the Kingdom Valley National T20 being the premier domestic T20 tournament. It's a great platform for youngsters to come and shine and then make their case stronger, knock the door for the call-ups for the internationals. Yes, lad.
And I like what I see from the PCB. You see Imran there being given the charge of Northern. We spoke about him. There's so many other future prospects on field at the moment. There you see Hassan Nawaz. Again, he's got those elements. We saw some good knocks from him. He's got that talent, top order batter. There you go, Mubassir, prolific scorer in the Quaid-e-Azam Trophy. Top scorer there, off spinner. He's an opener as well. Could be an all-rounder. Ruhail Nazir's been knocking the door. Wicket-keeper batsman. And then the man with the bat. We've seen some action coming in from both these. Now I'm going to talk about future aspects. Don't forget Haris as well if you talk about the shortest format of the game. Also a keeper and batsman. 2 straight from Salman Shah on that occasion. Allowed Sabzada Farhan to get underneath it and use that bottom hand to get the elevation. That is a sweet, sweet connection. KP is off to a flyer. Oh, he's missed it. He just crawled over it. They can come back for 3. The call is good. Haris has to hurry. And he makes it. A bit of clumsiness out there in the field. I don't know what happened. But Herrera just happens to have missed the ball completely. He's on his knees. Have a look. But this will be the running, of course. You see, he slows down Haris. He's coming back now. Again, he's slowing down. His partner wants the third. A flatter, quicker throw would have put him in trouble. He's made room, he's cleared the 30-yard circle, should be safe. Yes, he is. And nicely done. Fielding in pairs. Captain and Herrera. Well bowled. Once again. Couple of runs added here. That indiscipline at the beginning has allowed KP batters use the long handle. It realize the bowlers are under pressure, so Salman Shah has been taken to task early doors. 11 of the overs so far. These are very, very crucial runs. You may find out run scoring may not be easy later in the day. 2 straight once again. Guilty of that, and Mohammad Haris put him away very, very neatly. This is poor stuff from Salman Irshad. But Haris won't be complaining. Makes it an even bigger over. Leg stump half volley in any form of the game. Excellent use of the wrist from young Haris. He kept his balance, kept his shape. And Salman Irshad knows it was a freebie. Immediately corrects his line and length. Huge over. 15 of it. 4 gone, 40 for none. This is not the correct batting order if you're thinking what's wrong with the KP batting lineup. Well, so we're talking about future prospects. We showed some youngsters.
then there are certain players who've been around and can be a good prospect for white ball cricket. He's one of them. Kamran Ghulam can be a good call-up for one days if he can find a place in that middle somewhere in the order. You've got to break in at times with some brilliant performance, and he's been doing a good job. Plays for Lahore Qalandars as well, and then across formats for KP. Takes charge of number 3, the all-important position. Arshad Iqbal is another name. Can be good as well, and he's spent a few years with a couple of franchises as well. Why I'm talking about franchises, PSL, is because that's they're high-pressure games. There's lots of demands and there's lots of international players around, and they've proven their mettle. And then I've seen him bowl in the longest format as well. So they are prospects. And then the men in charge, I've seen Mohammad Wasim sitting there, keeping a careful eye and a watch on them. Well bowled, very well bowled. Amir! Most number of players that you mentioned as the prospects in both sides, I think most of them, if not all of them, have played for Pakistan under-19 or Pakistan A at some stage. So that is also a testament to the system, that they are graduating through the ranks. And this is how it should be. Next stage of development. Obviously, only so many can break into the national squad. One has felt the need for a lot more A tours with such a pool of exciting players. No, he's hit that ball hard. Amir Jamal's hand must be stinging, I tell you that. He's taken all the force onto his hand around the wrist area. He's in pain. The pain will set in now because it's the way it was hit. It just numbs you for a couple of seconds. Look at that, straight, and he didn't get it on his palm. It's somewhere just around the wrist area. I hope he's okay. But now he's in excruciating pain. Really stinging blow. Hope there is no damage, because it's the soft part of the hand, just below his forearm, on the wrist, looks like it. Forearm is more of a meaty part, but below that, above your hand, it's a very soft bone and it can be very dangerous. It's his non-bowling arm. He's been looked into very carefully by the physio. By now, I think the pain would start to subside if it's just the blow. Well, if you're talking about the pain, it will really knock his door tomorrow morning. That's when the soreness sets in. This is the shot now. This is a full-blooded drive, and it could have been a catch as well, but I'm not going to blame him for that. And it has hit him just above that wrist, where you get your wristwatch, and just below that forearm area. So, good part is that it's the facing side of the palm. So, had his arm been turned around, that's the bone area. But nevertheless, the impact is as painful as it can be on any part of the body. So just a little drink and just a bit of a rest allows the physio to have a careful look. Look at the, if you look at KP's start here, it's one of the good starts from the teams here up till now in the National T20. In the 5th over, he's got 40, and you'd be happy in modern day cricket if you're hovering around 45, 50 without losing any wicket in power play, you're happy. As the Pakistan Junior League, another opportunity for youngsters to basically showcase their talent, and with some mentors like Viv, Riches, Darren Sammy, Imran Tahir, Shoaib Malik, Shahid Afridi, Colin Munro, and for all the teams, Javed Miadad. It's just amazing to have all these names. That's Babar Azam, the baby Babar Azam for you. Hashtag Next 11, and it begins in October. Something very, very exciting to look forward to. The first ever of its kind in the world. Once again, PCB taking the lead. Short ball chance here and drops short. I just thought for a moment, just carried it.
That would have been a prize for him after getting hit on the arm. He's not expressed, but he showed his anger, but trying to bowl a short pitch delivery. It never was a bouncer, but he tried. And Usman Shinwari, it carried it straight in and out. Indisciplined start from Northern continues with this drop. Jamal gotten off to 5 dot balls. Can he finish it off with another one to get that coveted maiden over in this format? We haven't seen many. I want a wicket. It's twice in 2 balls that the batsman has been dropped. This time drives through, he'll just get a single. Brilliant over from Amir. 5 gone, it's 41 for no loss. शिनू भाई 2 पीछे कौन थे? उस्मान शिनवारी को बॉलिंग दी गई है। इस पावर प्ले का आखिरी ओवर वो करेंगे। अभी तक आखिर का फ़ायदा उठा नहीं सके नई गेंद का। जो नॉर्दर्न के बॉलर्स हैं जिनसे तवक्को की जाती है, जो फास्ट बॉलिंग इस टीम की स्ट्रेंथ है, शुरू में ये जल्दी विकेटें हासिल करें। एक तरीके से बल्ले पर नहीं आई। अली इमरान ने इसे जाकर रोका। जमान खान आज भी ये अली इमरान की लाइनअप में शामिल नहीं है, जो कि हाल ही में उनको पाकिस्तान टीम के कैंप में भी बुलाया गया था सीज़न शुरू होने से पहले, और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनकी आमद हुई थी। अच्छे बॉलर हैं, T20 क्रिकेट के वैसे बॉलर हैं जिन पर नज़र रखी जा सकती है। ज़रा सा हैरानी हो रही है कि वो इस टीम में अब तक जगह नहीं बना पा रहे। नई गेंद भी कर सकते हैं। अच्छा खेला इस बार गैप में। दूसरे रन के लिए भी आसानी से दोनों बैट्समैन आ जाएंगे, क्योंकि वो इनिंग्स से किसी भी फेज में बॉलिंग कर सकते हैं। मरीना जमान खान, कोई शक नहीं है इसमें, और हमने PSL में भी देखा कि बहुत इफेक्टिव रहे हैं, चाहे नए बॉल पे हों चाहे पुराने बॉल से आए। लेकिन अगर आप इनकी लाइनअप देखें, सुहेल तनवीर बहुत तजर्बाकार बॉलर हैं, सलमान इरशाद T20 फॉर्मेट में काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं, और उस्मान खान शिनवारी शायद इब्तदाई सतह है इस वक्त टूर्नामेंट की, हो सकता है कि थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हों डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, लेकिन जमान खान फ़र्क ज़रूर डाल सकते हैं या ख़ास तौर पर अपनी रफ्तार से, क्योंकि जो बॉलर खेल रहे हैं ये ज़्यादातर मीडियम पेसर्स हैं नॉर्दर्न के सेटअप में। अच्छी फील्डिंग अली इमरान की। उल्टे सीधे हाथ दोनों तरफ जाकर रन्स बचा रहे हैं कप्तान। जिस तरह की पिचेस हमने देखा है, अच्छा बाउंस है, अच्छा कैरी मिल रहा है। ज़मीन गुल को हमने देखा कामयाब होते हुए अच्छी पेस से कराते हैं। खुरम शहजाद बहुत इफेक्टिव रहे। तरह की पेस जमान खान की है, अगर वो अच्छी एरियाज पे गेंद करें तो जल्दी विकेट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। यार बहुत ही अच्छा उनका बॉलिंग का टेम्परामेंट भी है। हालांकि ये पिछले 1 साल से ही ज़्यादा सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने PSL में भी अपनी टीम को ये मैचेस जितवाते रहे हैं, और नई गेंद से भी इनको 2-2 ओवर्स करते हुए हमने पावर प्ले में देखा। उसके बाद मिड इनिंग्स में बॉलिंग कर सकते हैं, आखिर में गेंद को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा ये ऑलराउंड तर्ज का बॉलर मौजूद हो तो उसका तो सबसे पहले आपको नाम लिखना चाहिए टीम शीट पे। ATF सदर्न पंजाब जिसने आज पहली कामयाबी हासिल की,
दो गेंदें बाकी रह गई हैं इस पावर प्ले की। हमला करने के लिए जाएंगे हारिस। पर एक ही रन बन सकेगा। अच्छी इब्तिदा की है केपी ने। मैच में भी उनको कामयाबी हासिल हुई थी। बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डिफेंड करने में कामयाब हो जाते हैं। आगाज़ अच्छा है, कोई विकेट नहीं है। फरहान अली और मोहम्मद हारिस, इन पे काफ़ी नज़रें रही हैं और रहेंगी भी। इस तरह की जारहाना बैटिंग ये करते हैं। पावर प्ले में इनका इंतहाई अहम रोल है। फरहान पिछली बार के टॉप स्कोरर हैं। इस बार पर यार दूसरा मैच है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा रन्स बटोर सके। फॉलो किया साहबजादा फरहान को। ये ओवर बाउंड्री के बगैर गया और ये जीत है उस्मान शिनवारी की। तो पावर प्ले का आखिरी ओवर करना कभी भी आसान नहीं होता। 6 ओवर्स के बाद 46 पर कोई नहीं। करेगा ना एक और, करेगा ना एक और। लाला लाला तगड़ा रही मेरी जान। एक दो कदम टूट गई है। आमिर जमाल की जगह पर महरान मुमताज आएंगे, जो कि बाएं हाथ से फिंगर स्पिन करते हैं। तो पहला ओवर ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं मिली हैं इस पावर प्ले में, लेकिन रन्स बनाते रहे ये दोनों खिलाड़ी। बार बार स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं, गैप्स में गेंद को खेलते रहे हैं। हारिस बड़ी समझदारी के साथ खेल रहे हैं। साहबजादा फरहान ये वापस आए हैं ओपनिंग पोजीशन पर। इस सीजन में नंबर 4 पर खेले थे। बढ़िया, बहुत आला मेरी। एक ही विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे महरान मुमताज पिछले मैच में, और एक ओवर में 2 चांसेस क्रिएट किए थे, लेकिन दोनों कैच ड्रॉप हुए। अच्छी बॉलिंग करते हैं, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। चल चल, वेल बोल्ड, ब्यूटीफुल। हारिस ने यही अपना T20 डेब्यू किया था अब से 2 बरस पहले। ये पहली बार निकल आए थे, स्क्वायर के फील्डर को बीट करने में कामयाब रहे। निस्फ सेंचुरी बनाई थी मोहम्मद हारिस ने अपनी पहली इनिंग्स में। रिजवान की मौजूदगी में भी इनको विकेट कीपिंग कराई जाती है। तो ये अच्छे उभरते हुए विकेट कीपर हैं, बासलाहियत हैं। अभी वनडे इंटरनेशनल मैचेस जरूर खेले, इनको शायद कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि ये गैर मामूली टैलेंट है इनमें। मोहम्मद हारिस की जहां तक बात है, क्रीज के बाहर निकल कर खेला, रन एक ही मिल सकेगा। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं महरान मुमताज। अभी तक उन्होंने पाले में बॉलिंग नहीं की बैट्समैन के। आखिरी गेंदर जरूरी होगा ये कि बाउंड्री से दूर रखा जाए। फरहान इस वक्त स्ट्राइक पे। कैच इट, एक मूवी, मार। बहुत आला मूवी। 50 रन खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल कर लिए। बड़े एतमाद से ये दोनों खिलाड़ी पेशकदमी कर रहे हैं। तो ये पावर प्ले का अहवाल है। 80 बाहर गेंद बचना चाह रहे थे महरान मुमताज। पहले ओवर में साहबजादा फरहान
हमेशा से हवा में शॉट खेलना उनको पसंद रहा है लेग साइड में। इस बार बॉल बचे, ये कैच होना चाहिए था। उस्मान शिनवारी ने गलती की मिड ऑन पोजीशन पर, इसलिए नई जिंदगी मिली साहबजादा फरहान को। अच्छी फाउंडेशन सेट कर दी है और ये दोनों, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। स्ट्राइक रोटेट अच्छा कर रहे हैं, जहाँ भी लूज डिलीवरी मिल रही बाउंड्री हासिल करने जा रहे हैं। बैटिंग भी काफ़ी केपी के पास मौजूद है। 156 रन बनाने के बाद कामयाबी हासिल की एटीएफ साधन पंजाब ने, और इसे शायद बहुत बड़े स्कोर को ये टारगेट भी ना कर रहे हूँ। इस वक्त यही हिकमत अमली है कि मेरिट पर खेलते चले जाएं, लेकिन ज़्यादा अच्छी बॉलिंग भी नहीं हुई। लेग साइड पर बहुत सी इनको ऐसी गेंदें मिली हैं, फ्री हिट्स मिली हैं अब तक। नॉर्दर्न उस तरह विकेटें हासिल करने में कामयाब नहीं रहा। थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं बॉलर्स नहीं कैपिटलाइज कर पाए। इस तरह की पिचेस पे जहाँ पे गेंद अच्छा बल्ले पे आ रहा है, आउटफील्ड तेज़ है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छे एरियाज़ में गेंदबाजी करें। जो भी बैटर आएगा वो रन बटोर नहीं जाएगा यहाँ पे। ज़्यादा मुश्किलात देखने को नहीं नज़र आई। टर्न थोड़ा ज़रूर देखने में नज़र आया। स्पिनर्स कितना कैपिटलाइज करेंगे ये ज़रूरी होगा नॉर्दर्न के लिए। उठाकर खेला 4 रन के लिए साहबजादा फरहान। ये खुद को ज़्यादा देर रोक नहीं सकते ऊंचे शॉट खेलने से। इस बार अच्छा हाथ दिखाया मिड ऑफ के ऊपर से। ये लेंथ और लाइन जो है यहाँ पे बहुत जोर से शॉट खेलते हैं साहबजादा फरहान। हल्का सा रूम दिया था अपने आप को, लेकिन लेंथ मिल गई थी, उसको बआसानी सर्कल के बाहर पहुंचाने में कामयाब रहे। थोड़ा सा अब एक्सलेट करना चाहेगा केपी, क्योंकि पावर प्ले ख़त्म हो गया है। नया बॉल भी ऑफ कर लिया इन्होंने। बड़ा अच्छा टारगेट अचीव कर लिया था पावर प्ले ने। फील्डिंग में अभी भी कोई तब्दीली नहीं की। मिड ऑफ के फील्डर दायरे में हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद की, बॉल बचे इस बार क्योंकि ये बाउंड्री बॉल थी। गैप में नहीं खेल सके साहबजादा फरहान। नासिर थे बाउंड्री लाइन पर। पिछले मैच के बाद अली इमरान का ये कहना था कि उनकी टीम में इतना तजुर्बा नहीं है। जाहिर है खुद उनको कप्तानी का भी इतना तजुर्बा नहीं है, और समझते हैं कि जो बॉलिंग पार्टनरशिप में होती है दोनों एंड से, वो भी नज़र आई नहीं है बात अभी तक। तजर्बा मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ। थोड़ा सा अगर आप देखें टीम कॉम्बिनेशन पे मैं ज़रूर सवाल करूँगी। रोहेल की वापसी हुई है, ये अच्छा है। मोहम्मद हुरैरा को बीच में डाल सकते थे अगर बैटिंग की बात करें। बॉलिंग को ज़्यादा बुरी नहीं की, ऐसे तजर्बाकार बॉलर ज़रूर रहे हैं इनके पास जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इनके पास स्पिनर्स इनके पास मौजूद हैं। सिर्फ एक जो हिकमत अमली होती है उसकी कमी अक्सर जगहों पे नज़र आई। ये अच्छा यॉर्कर था, बल्ले की टो पर गेंद लगी और बल्ला टूट गया है, तो मुश्किल इसे डालने में कामयाब हुए। कल इनकी बैटिंग में एक वो वन डायरेक्शनल चीज़ नज़र आई, क्योंकि सब अटैकिंग प्लेयर हैं, सबको पसंद है आके अपनी शॉट्स खेलना। वो थोड़ा सा उमर अमीन की कमी भी ज़रूर इनमें रही। एक आधा बल्लेबाज ऐसा ज़रूर चाहिए जो जिसको इनिंग्स बिल्ड करनी आती हो। मोहम्मद हुरैरा मौजूद हैं, रोहेल एक्सपीरियंस हैं, उनको मालूम है कि मिडल ओवर में किस तरह इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं। उस्मान शिनवारी ये वापस आए हैं, बहुत अरसा जख्मी रहे, फिट हुए हैं और ये अपनी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। ये जो इनके आबाई इलाके की टीम है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक अरसे तक खेलते रहे। अब यहाँ रावलपिंडी ये इनका नया सकना है। रावलपिंडी से 2 बरस से ये इसी टीम का ही हिस्सा है। कभी कभार नजर आते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में।
फास्ट बॉलर्स की जब बात की जाती है, इन्हें पसंद है पेस जनरेट करना। थोड़ा बेहतरी जो नज़र आई है वो ये कि वेरिएशंस अब लाए हैं, एंगल्स चेंज कर लेते हैं, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट आके वेरिएशंस अब देखने को नज़र आती हैं। थोड़ा सा रिदम मिसिंग है। एक और अच्छा ओवर, इसमें भी ज़्यादा रन्स दिए नहीं उस्मान शिनवारी ने। 59 मजमूई स्कोर, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। कोई भी कामयाबी हासिल करने में नहीं अभी तक नॉर्दर्न कामयाब हुआ। 5 बॉलर इस्तेमाल कर चुके हैं। सुहेल तनवीर, स्पिनर्स एक ही अभी इस्तेमाल किया उन्होंने। मुबस्सिर को भी किसी लम्हे पे ये ज़रूर लाएंगे बॉलिंग के लिए। किंगडम वैली नेशनल T20 कप आप किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, एक्साइटिंग इनामात पा सकते हैं और आप भी अगले विनर हो सकते हैं। इससे इस मौके से फ़ायदा उठाइए। जिस तरह ये दोनों बैट्समैन इस बैटिंग पिच से फ़ायदा उठा रहे हैं। मोहम्मद हारिस लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में लगते हैं। यही बात साहबजादा फरहान के बारे में भी कही जा सकती है। और एक जो फ़र्क है दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स में और नॉर्दर्न में कि इनका ज़्यादा इन्हिसार इनकी पेस पर है। नॉर्दर्न के पास 4 मुस्तनद पेसर हैं और वाहिद जो स्पिनर हैं, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर मेहरान मुमताज़ हैं। ऑफ स्पिनर मुबस्सिर खान को भी कुछ ओवर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत बड़ा छक्का लगाया। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और पूरी कुव्वत सर्व की साहबजादा फरहान ने और ये गेंद तकरीबन दूसरी मंजिल से होकर नीचे आई। बहुत अच्छी शॉट थी ये, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, थोड़ा सा विकेट पे नीचे निकलते हैं ताकि रूम दे सकें और बहुत बॉटम हैंड डोमिनेटेड शॉट थी ये। अच्छा रीड कर लिया था, ज़्यादा टर्न करने नहीं जा रहे मेहरान। अक्सर उनको देखा है कि फ्लैटर ट्रैजेक्टरी के साथ तेज तेज गेंद करते हैं, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। ये नो बॉल, ये फ्री हिट भी होगी। पहली बार स्पिनर ने नो बॉल की है। तरह एक बार फिर मौका है एक और छक्का चौका लगाने का और इसे उठा खेला। शानदार हिट, मुसलसल दूसरा छक्का इस ओवर में साहबजादा फरहान की जानिब से। इस वक्त वाकई छक्के छुड़ाने के मूड में। महंगा ओवर साबित हो रहा है ये इस वक्त। एक बार फिर लेंथ ऐसी दे दी थी नो बॉल पे, अगर आप देंगे तो बल्लेबाज ने इसको बाउंड्री के पार ही लेके जाना है। और ये स्लॉग स्वीप साहबजादा फरहान इनकी पसंदीदा शॉट है। आउटसाइड ऑफ स्टंप भी ये ड्रैग कर जाते हैं और मार लेते हैं 6 रन। यहाँ पे कोशिश होगी KPK के ज़्यादा रन्स करें, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस हमने देखे हैं, सेकंड मैच की पहली इनिंग्स जो है 169 एवरेज बनती है। रन्स यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ इससे पहले 163 यहाँ औसत स्कोर रहा है बाजी में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन इस साल ज़्यादा रन्स बन रहे हैं, विकेटें ज़्यादा बेहतर हैं। बेहतर बल्ले पर आती है अगर आपकी अच्छी टेक्निक है और आप फास्ट बॉलिंग खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ बहुत से रन्स मौजूद हैं। हारिस ने आखिरी गेंद पर 1 रन और हासिल किया। 75 मजमूई स्कोर 9 ओवर्स के बाद।
नॉर्दर्न की टीम अपना होम मैच खेल रही है, इससे तमाशाइयों की ज़्यादा दिलचस्पी है इस मुकाबले में। मौसम की कदर बेहतर है, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। T20 क्रिकेट को यहाँ पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में T20 क्रिकेट के परस्तार आपको हर जगह मिल जाते हैं। पिछले साल भी यहाँ मेला सजा था, नाइट मैचेस ज़्यादा थे, इसलिए जो शायकीन क्रिकेट थे उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। अभी भी जो ज़्यादा पुरजोश हैं वो इस गर्मी में भी मौजूद हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए। सलमान इरशाद की वापसी हुई है, 15 रन दिए थे पहले ओवर में, महंगा साबित हुआ। यहाँ रावलाकोट से ताल्लुक है सलमान इरशाद का, और इसे फाइन लेग की जानिब खेल दिया बड़े खूबसूरत तरीके से। इस गेंद को बआसानी कनेक्ट करने में कामयाब हुए, और ये शॉट या अवलीन इनकी तरजीह रहा है। स्टंप्स की लाइन से भी खेलने में कई बार कामयाब हुए हैं मोहम्मद हारिस, और अब ये दोनों बैट्समैन खतरा बनते जा रहे हैं। दोनों एंड से पिटाई शुरू है। ज़्यादा पेस थी नहीं इस गेंद पे, अच्छा रीड किया था, इनसाइड द लाइन आके खेला, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे इत्मीनान हैं। ये भी खूबी है, विकेटों के दरमियान तेज दौड़ना, फील्डर को दबाव में लिया। हसन नवाज हर वक्त पेशकदमी करते हुए पहुंचे। कल 190 रन्स नॉर्दर्न की बॉलिंग के खिलाफ बने थे, और आज भी ऐसी पोजीशन है जहां ये सोच सकते हैं 190-200 के मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा के पास अभी तमाम 10 विकेटें बाकी हैं। 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी नजरें और पैर जम चुकी हैं पिच पे। बिल्कुल, अगर आप इनकी बैटिंग देखें, कामरान गुलाम अभी रहते हैं, खालिद उस्मान, आमिर अजमत थोड़ा डाउन दी ऑर्डर खेल रहे हैं, आदिल अमीन है, बैटिंग बहुत मौजूद है। कोशिश यही होगी कि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया जाए और 8 या 9 रन की औसत से स्कोर करें, और उसके बाद आने वाले बैटर जो है उसको मजीद एक्सेल करें। अब समझती हैं इसके बाद कामरान गुलाम को ही भेजना चाहिए या बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो सकता है? सरवर आफरीदी अच्छे हिटर हैं, आमिर अजमत, इनसे भी आप बड़े शॉट्स की तवक्को कर सकते हैं। अगर आप मेरी ओपिनियन मांगे तो मेरा ख्याल है आमिर अजमत को ज़रूर भेजना चाहिए। कामरान गुलाम थोड़ा सा टाइम कभी ले जाते हैं। से उठाकर खेला, ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई, 2 रन्स मिल जाएंगे। पिछले मैच में भी जब आमिर अजमत को मौका मिला, बहुत अच्छी शॉट्स खेली उन्होंने। तवील कद के मालिक हैं, अच्छा टाइम करते हैं गेंद को। एक बार फिर मौका था हारिस के पास, वो गेंद को निकाल देते विकेट कीपर और फाइन लेग के दरमियान, क्योंकि सुहेल तनवीर दायरे के अंदर मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर फॉलो किया उन्हें काफ़ी हद तक सलमान इरशाद ने। बाउंस भी थोड़ा मिल गया था जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए मोहम्मद हारिस। दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, मोहम्मद हारिस और सलमान इरशाद, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की निस्बत है। और बोल्ड कर दिया, पहले स्टंप से आगे चले गए, इस बार पीछे चले गए, और सलमान इरशाद को विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का सिला मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी पहली विकेट गंवाई। हारिस अच्छी इनिंग खेलने के बाद आउट हुए। बाउंड्री की तलाश में थे, और सलमान इरशाद जितना एक्सपीरियंस इनका है, विद इन विकेट्स रखा, अच्छी लेंथ हिट की, और इस बार चूक गए। 33 रन बना के वापस जाएंगे, और केपी को दूसरा नुकसान उठाना पड़ा, 83 पे 2।
राशन की मार दो ना ऐसी ये हमारी मार को तो अंदर आई थी Kamran Ghulam, the guy who has the most number of runs at domestic level. Wonderful player. Always looking for runs. A busy player he is. Definitely one for the future. Still very young, very fit. Very good cricketer. And he's got the platform to go big. Next time, sir. Halfway stage and 83 for 1. So this is the moment where probably a small window of opportunity for Northern to make their way into the game. Try to get another couple of wickets and stop this 184 showing on the board. That's the ball. I think he's trying to make room for himself a little too often. We were just talking about it to my colleague over here when we were not doing the commentary, that probably you'd like to play him through the line, straight in the V, instead of making room and going over extra cover. Because he's the kind of bowler, he'll always attack the stumps. And he's a slinging action, so the ball will come at a flatter trajectory, quick. It will hit the stumps if you miss. It will never bounce over, hardly. Another future prospect. He's such a treat to watch, Hassan Nawaz. We just hope that he keeps going on this way. Form will come and go, but his technique, the way he plays, superb. Another great batsman to watch in white ball cricket. Kamran Ghulam. This KB been so consistent. Wanted to go big. Sabzada Farhan, very talented player. He's been around for a while now. Sabzada Farhan first came into scene with Islamabad United when he opened with Luke Ronchi, and he did pretty well. And since then, it's been up and down. He's probably not even settled in one number. He's been playing at opener. He's played at number 3, number 4 also. Well, look at this for a record. 7 matches in PSL, 51 runs. Average is not something to look for, but the strike rate, I think, is pretty amazing. 130 plus consistently. Up and over, there is a fielder, but no chance for him. This will run away for 4. Kamran Ghulam is up and going. Up until outside the off stump. Quick hands, place it beautifully. Frustrated, rightly so. Speaking of PSL appearances, Kamran Ghulam, important 3 and 4 for Lahore Qalandars. It's in the air, and it will go just around 1 bounce near the rope for a boundary. Can afford to play that shot. He knows mid-off is in. And it's a forehand, horizontal bat shot. Slapped it straight.
Now that's the trouble when you're a bowling side against KP. They'll keep coming at you. They're such an aggressive side, such aggressive in nature, this KP side. No wonder they've won almost every championship at domestic level. The reason is their aggressive nature. They just lost a wicket, but look at that. Kamran Ghulam has just come and started hitting boundaries. That is their strength. It's 95 for 1 after 11. This will be a real test for Northern from here on. 95 runs for KP. They've just lost 1 wicket. 9 overs to go. They've got plenty of big hitters to come. Left arm round the wicket. It's such an age-old method of using your feet against spinners, and it always works. The one thing's for sure, which we've been watching, KP have come out with this plan that they will attack Mehran Mumtaz and his 4 overs, and they've been doing that from the word go. Now placing is beautifully, Sabzada Fran. Look to it straight. He's moved to 47. Just 39 deliveries and look to get 2. They're running hard. Deciding against it, and rightly so. 1 run added. 100 up for KP in just 11.2 overs. They look good to get to that 180, 190 mark from here on. Sabzada Farhan is looking dangerous. Catch ho gaya. A chance, and he's gone. You see, it pays off if you can just keep your patience. When they're out there to hit you, the opportunities will open up, and that's what happened for Mehran Mumtaz. And this time again, trying to go for that big shot, falling shot. And that's a big wicket, I'll tell you that. Kamran Ghulam can be lethal. He can shift gears at will. 100 for 2. Another very talented batter, Adil Amin, in at number 4. Kamran Ghulam against the run of play. He decided that he's going to go after every delivery. Lost his wicket to Mehran Mumtaz. He did get to the pitch of the ball, but still the ball was pretty away from him. He wanted to force it over that long off fielder, but only managed the fielder there and lost his wicket. First wicket for Mehran Mumtaz. Next one. Perfect. Thank you. Now the Lameen. Don't forget there's one change, a forced change for KP, and that is Asif Afridi is not well under the weather. Well bowled, Mehran. Beautiful, beautiful ball. Maz Khan is the change, the leg spinner. That's the wicket. The idea was right to come down, but then probably just 2 away from the ball.
Again, that extra cover region being... I mean, he knew there's a fielder at long off. He was trying to clear him or just play to the right of him. Couldn't angle the bat enough. Yeah, the idea was to go over extra cover fielder. Could not quite execute it right. Good. That was hit hard. Really hit hard. Mehran Mumtaz did well just to get the hand on it. End of 12 overs, 102 for 2. And before we go, let's have a look at that. Yeah, it was, as you just said, it was going away from him. Wanted to go over extra cover. Could not quite come underneath it to get that force. Lost his wicket, Kamran Ghulam. One away from a 50, Saib Zadafran. And that's the way to get it. Keeping it down, playing that pull shot. Well earned 50, opening the bat for KP and gets it off 42 deliveries. 7th 50 in National T20 for Saib Zadafran. You were talking about him a while ago, his appearances in the PSL. He has gone up and down. Islamabad played him as an opener, Karachi got him in the middle order, and it's a different job, so to speak, really. Opener is using the circle and he's got someone like Luke Ronchi. But when you talk about down the order, you don't have enough time. You've got to go out there and start hitting and swinging your bat. Here again, last season I remember when he was playing, when Rizwan was opening, he was down the order. When Rizwan left for the national duty, he came up the order. I'll tell you one thing he doesn't like to do, and that's keeping. You can actually see that he's not actually enjoying it. Especially when there's variable bounce, you got leg spinners, tall leg spinners, getting the ball on your tip of your fingers time and again. You just take them off and you say, "Ja main nahi karta." But hats off to these players, modern day players. They don't shy away from something that's different, given out of their comfort zone. If you've got a bit of talent to keep, they do that. We've seen Imam ul Haq do that. We've seen Omar Akmal do it for the national side. Many stand-in keepers, and there was a trend at one point in time where not to sacrifice a batsman, they would basically ask one of the existing batsmen to keep wickets if he can. Nowadays, if you want to be a wicket-keeper batsman, someone like Ruhail Nazir, Haris, Rizwan, you've got to be a top-order bat. Around the world, wicket-keepers are usually top-order bats. That's the modern way. You can't be a wicket-keeper and a number 7 batsman, no. Yeah, also, if you're talking about Saibzada Farhan, I believe his physique is not even made for being a wicket-keeper. He's a little too stiff to be a wicket-keeper. He can do it sometimes when a wicket-keeper is injured, but not on a consistent basis or for a complete match. I don't think so. He's made for that. On the other hand, if you look at Ruhail Nazir, somebody like him, have a look at that. Very sleek, very flexible. That's his 50th T20 match. That's how a keeper should look. Flexible. Look at Haris, Rizwan. He's going down for 4. Oh, that's a good stop from Herrera, but I'll give the marks for the effort. He's basically tried to hit the ball back into play. Are we going to have a second look just to recheck? The umpires probably want to confirm if it has at any stage touched the ropes. 10 on 10 for the effort for young Herrera. Have a look at that. This is what youngsters do. The fresh legs do to your confidence. They bring so much energy to the team.
If he's able to stop this one, this will be a huge confidence booster. Can't tell it from here. It looks fine from here. Oh, that's a superb job. He's certainly saved a couple of runs for his team. Well done, young Herrera. Again, a good stop. Couple added to the total. 13 gone, 1-0. Well, in fact, 1-1-0 for 2. He's been superb, Shahzada Farhan. Nice use of the wrist. Plays all around, is not scared to go over the head of the fielders, uses his feet very smartly. And look at those shots, all around the ground, an on drive to a left arm spinner. Just magnificent. A wonderful 50 for Shahzada Farhan. A wicket for Salman Irshad, a wicket for Mehran Mumtaz. Haris looked good for his 33. Kamran Ghulam started off nicely with a couple of boundaries, but one too many. Shahzada still there on 53 alongside Adil Amin, who's on 4. 110 for 2 KP. $110 for 2 after 13. We're talking about wicket keepers and the flexibilities, and then you mentioned about Ruhail Nazir and Haris compared to the makeshift wicket keepers. Well, it's an interesting thing, the agility of a wicket keeper to be able to move to his right and left swiftly. And to be on his toes, he needs to have, of course, strong legs. And you see lots of wicket keepers have different ways of their stance when they're waiting for the ball. To fast bowlers, some crouch completely, some stay on bent knees, feel that they'll provide them more spring to move left and right. I was talking to Rashid Latif the other day, and he said something very interesting. Don't know about the modern day wicket keepers, how they train, but they didn't used to train hard. They didn't do weights on their legs because you don't want your muscles to get stiff and hard. You want that elasticity. And that's an interesting thing, and you'll always see those lean bodies. Ruhail there, that helps you move around swiftly sideways. Sideways is the important part. 111 for 2 now. It's time for gear number 3. And that's gone in the air, second at top edge. It'll take some catching, I tell you. It can land in between as well. And oh, Usman Khan Shinwari, he's covered up for that drop catch a little while ago. That is a spectacular catch. He's come out of nowhere, including the bowler. 3 fielders were approaching this, and then he comes flying. Wow, he got his fingers underneath the ball. I like that. Fast bowlers doing that. Yes, it has been the tournament of great catches. Another one. This time Usman Shinwari doing it on his own bowling. Have a look at that. He had to run backwards for a long area, had to cover it. Dived it perfectly and ended an important inning. Shahzada Farhan caught and bowled brilliantly by Usman Khan Shinwari. Scored 53 runs. KP Nelson for 3. Mohammad Sarwar Afridi. The loss of Shahzada Farhan.
Bit of rebuilding to do for KP. They've lost a couple of quick wickets here. Well, what about the catch? Let's have a look at it again. The Usman Khan Chinwari hit was a very tough one. After going follow through, you had to run backwards. Then had to dive and get that catch. Wonderful, excellent by Usman Khan Chinwari. Good fitness shown by him. They're never easy. They usually get there of their own bowling. Well, you're right. It's very tough. First in your follow through, then to immediately turn around, go back and take such a high catch. I said it's going to take some catching. Brilliant. Again, saw him coming down, dropping it short. Got to be quick on your thinking as a bowler. And that's what happens when you're watching the batsman's footwork. Where is he going? Is he going in? Is he shuffling? Is he making room? And that's how you follow them. So good ploy, just dropping it short slightly. It seems like these young guns, these young legs are pushing these senior players to at least field well and catch well. Because we've seen some excellent catches in this tournament, and this one definitely is top 3 in that list. Wonderful catch. Probably will top the list in my opinion. Because in follow through, going back, just amazing. Well bowled, Sheenu bhai, lovely yaar, good over. It's been a good over for Usman Chinwari. Who do you think has taken the best catch so far? Till now, Ilyas, maybe? That was one catch that I reckon is closest to this one. But in my opinion, I think this one tops the list. Hassan Nawaz took a blinder. Really happy from the standards of the fielding in this tournament. These young legs, these fresh boys, fit boys, making the difference. Happened there. He wants his award now. You said it's the best catch. He says, where's my trophy? Straight away. He'll have to wait till the end of the match, at least. If you know Usman, he can demand anything. He wants that extra bit of taping on his boot, I suppose. That's what is happening. This is how he had to go back. First he looked around, is anyone coming, and he said, no, I don't think anyone's going to come. I want that wicket because it's mine. Going backwards, taking a catch over your head is always difficult, whether you're a bowler or a fielder. And the cardinal rule that they always say, the good fielding coaches, whenever it's a high catch, try to get underneath it as quick as possible so you get in that good position. Unless you really unable to reach it and you have to dive at the last moment. Good fielders get into position very quickly. Yeah, on this occasion, the good part for Usman Chinwari was that the ball stayed in there for a long time. He had enough time to return back and then run backwards. Still, it took some asking. It was a great catch. Catches is the call, and it's gone. 2 in the over for Usman Khan Chinwari. The captain's happy, and things for KP have just taken a shift from 4th gear to 2nd gear. Now the fielder was placed for this sort of a shot, and he hit it straight in his hands. Adil Amin going without troubling the scorer. Match was caught by Hassan. Usman Chinwari. 114 for 4.
Adil, the new batsman. But it's not my fault. My screen says Adil, so now it's Amir. Batting is of no problem for KB. They do bat deep in various kinds of batsmen because they have power hitters as well. They can even go up to Asif Afridi to hit a few, who's not playing today, by the way. Oh, 3 in the over. He's cleaned him up. He was nowhere there behind the line of the ball. Perfect one. Aim the stumps and get rewarded. Oh, it's just fantastic. Wonderful bowling. Usman Khan Shinwari, have a look at that. Pitched in and came in. There was a huge gap between bat and pad. And that is what it was needed by Usman Khan Shinwari to get the stumps. What a comeback. Again, it has been the day of comebacks. Earlier we saw Southern making a comeback. Now, Northern making a comeback in this game. Amir Azmat bowled on the very first delivery. 114 for 5. Skipper Khalid Usman moving in at a time when KP is in a bit of a bother. And the main reason has been the last over from Usman Khan Shinwari. He's taken 3 wickets in that over. That has definitely made Northern come back in this game. At one point they were 83 for none and now 114 for 5. Wow. Pressure definitely back on KP. Look at this. It all started off with this brilliant catch. Excellent. And then this was an ordinary shot, played it straight to the fielder. Made no mistake there. And this was a peach of a delivery. After pitching, came in. And guess what? He is on a hat-trick. Yeah, he took those 3 wickets in that over. Not only the 3 wickets, he's been very economical, 17 in his 3 overs. Usman on his day can create a lot of problems for the batsman. He gets that rhythm going and then he's unstoppable. As I mentioned earlier, he has been a victim of regular injuries and then it's been in and out. He always puts an impact whenever he comes around. And he's good in short bursts. Had a good knock, Khalid Usman, the other day with the bat. He still has a lot of overs. Got 5 after this, so he may not just straight away go after the bowling. Keeping in mind there's not much to come in terms of big hitters. As I mentioned earlier, there's no Asif Afridi as well available today. Just the bowlers, Imran Khan Senior, Mohammad Imran, Maz Khan. And that's a bad ball. It's a really bad ball. You can't do much about it. As a bowler, you got to just turn around, put your head down and get to the top of your mark. You know that you've made a mistake. Yeah, Northern bowlers will have to be very careful because they've put the pressure on KP. You don't want to release it because KP is sort of a side that if you give them a little hope or a little window of opening, they aren't going to miss out on that opportunity. Khalid Usman can bat. He has this habit of playing those cameos that he played in the last match also. Server can definitely play. Good cricket, very good cricket.
Played it with soft hands and looking for two and getting it. That is top running. You have to do the rebuilding process, KP, now. This running between the wicket will help. Just probably not only focus on those big hits, get these going. You need to get a good score. But about a comeback from Northern. 3 wickets in an over from Usman Shinwari. I mean, they were 83 for no wicket. That's where it all started. 121 for 5 at the moment. Last ball of the 15th. This is in the sound, but it's bat hitting the turf. 7 of the over. It's 121 for 5. उस्मान शिनवारी हैट्रिक पर थे, लेकिन उनको हटा लिया गया है और सलमान इरशाद के हाथ में गेंद देखी जा सकती है पवेलियन एंड से। जरा सा रास्ता भूल गई है खैबर पख्तूनख्वा की टीम। 83 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और उसके बाद 121 तक पहुंचकर उन्होंने अपनी आधी टीम गंवा दी। लेकिन अभी तक सरवर आफरीदी हैं जिन्होंने कल अच्छी बैटिंग की, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ अपनी टीम को एक ऐसे मकाम पर पहुंचाया यहाँ से उनके बॉलर्स को इसको डिफेंड करने का मौका मिला। खालिद उस्मान के साथ ही इनकी पार्टनरशिप हुई थी इनिंग्स के इख्तिताम पर और आज भी वो कारकर्दगी दोहराना होगी। शाह फैसल जी। जी बिल्कुल, और आखिरी 20 मिनट अच्छे नहीं रहे खैबर पख्तूनख्वा के लिए। के अंदर सलाहियत है, फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं और किसी भी सूरत हाल में हौसला नहीं हारते। कप्तान खालिद उस्मान भी काफ़ी हैंडी क्रिकेटर हैं, अच्छे बैटर हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छे कायद हैं। यहाँ हर तरह के मुश्किल फेज से निकल जाना ये इस टीम की एक बहुत बड़ी खासियत बनता जा रहा है। कैरेक्टर इस टीम का अब पूरी तरह सामने आ चुका है। 4 रोज़ा मैचेस में कायदे आज़म ट्रॉफी के टूर्नामेंट्स में भी हम देख चुके हैं और वाइट बॉल क्रिकेट वो तो ऐसा लगता है जैसे इनके घर की, इनके ड्रेसिंग रूम की बांदी हो। सिराजुल्लाह को अभी तक मौका नहीं मिला, एक और ओपनिंग बैट्समैन है। सलाहियत के साथ जो आपने बात की टेम्परामेंट की, बहुत ही कूल टेम्परामेंट रखते हैं खालिद उस्मान। ये बैटिंग डेवलपमेंट हुई है इनकी, जो नई नस्ल की खैबर पख्तूनख्वा के जो इस दौर के बैट्समैन हैं वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। एक ज़माने में कहा जाता था कि जब खैबर पख्तूनख्वा की टीम ये अटक इस बार पहुंचा करती थी तो इनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाया करता था, इनके बैट्समैन यहाँ आकर रन्स नहीं बनाया करते थे। लेकिन अब तो ये ज़्यादा क्रिकेट खेलती है अटक के इसी तरफ हैं पिछले कई बरस से। हवा में खेला और ये कैच अली इमरान ने कोशिश अच्छी ज़रूर की। ये बड़ी अहम विकेट हो सकती थी सर्वर की, जो बड़े डेंजरस हैं इन डेथ ओवर्स की बैटिंग में। स्लो डिलीवरी थी सलमान इरशाद की, अच्छी दलेराना कोशिश थी। आसान नहीं होता इस तरह की आगे गिरती हुई गेंद को कैच के लिए जाना, लेकिन कप्तान अली इमरान ने कोशिश की।
अच्छा लेंथ में रद्दोबदल कर रहे हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहे सलमान इरशाद। लेकिन यहाँ तारीफ होनी चाहिए जिस तरह नॉर्दर्न के बॉलर्स ने कमबैक किया, क्योंकि एक मौके पर लगता था कि गाड़ी निकलती जा रही है और शायद वो सवार नहीं हो सकेंगे, लेकिन इस वक्त वो खेल पर हावी हैं। हाफ स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रन्स करवा दिए हैं और इस विकेट पे शायद इतने ज़्यादा रन करने इजी नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से कमबैक किया है। ऑफसाइड में खेला और यहाँ अच्छी फील्डिंग नहीं, उस्मान शिनवारी जो है उनके थ्रो को बैकअप नहीं किया इसका। 16 ओवर्स मुकम्मल हुए, 127 5 खिलाड़ी आउट। चार ओवर्स का खेल बचा है और पहले तारिक जब आप बात कर रहे थे अटक के इस पार की वो नफसियाती हद उबूर की केपी के खिलाड़ियों ने, कट करने में कामयाब हो गए और थर्ड मैन पर कोई फील्डर नहीं, बाउंड्री लाइन पर 4 रन्स मिल गए। इस ब्रेक थ्रू शॉट की जरूरत थी खैबर पख्तूनख्वा की टीम को वापस रवानी पाने के लिए। रफ्तार कम थी लेकिन अच्छा गैप ढूंढ निकाला और बाउंस को भी अच्छा कोप किया सर्वर ने। अच्छा वेट किया बॉल का, क्योंकि बॉल काफ़ी सुस्ती से आई विकेट पे से, और यही शायद हिकमत अमली होगी अब बाकी मांदा मैच में तमाम ही बॉलर्स की, बॉल को विकेट पे पटका जाए और वहाँ अगर आप वेरिएशंस यूज़ करें, फिंगर्स का इस्तेमाल करें, कलाइयों का, बैट्समैन को वो मोमेंटम नहीं मिलेगा शॉट में ताकत हासिल करने के लिए। डिफरेंट चैलेंज होगा बैटर्स के लिए बाकी मांदा मैच में। मैं बात कर रहा था कि वो एक नफसियाती हद थी जो खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों ने उबूर की। मुझे याद है कि वो जो एक जनरेशन आई थी जिसमें वजाहतुल्लाह वास्ती, कबीर खान, वसीम यूसुफी, वो एक ऐसे अरशद खान शायद उसी बैच का हिस्सा थे, वो उन्होंने आके इस बैरियर को तोड़ा और आके परफॉर्म किया डिफरेंट सराउंडिंग्स में। जाहिर है ज़ुबान का फ़र्क होता है, अटक के इस तरफ आप आए, वो एक नफसियाती हद जब अबूर हो गई उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा की क्रिकेट ऊपर से ऊपर ही चली जाती रही। इस पुल शॉट पर भी एक ही रन खालिद उस्मान बना सकेंगे और एक फ़र्क शायद ये भी रहा कि उस दौर में 80 या जो 90 की दहाई में इनकी केपी की जो क्रिकेट थी वो बड़ी हद तक पेशावर से ही मशरूत थी, पेशावर में से ही क्रिकेटर्स सामने आते थे। लेकिन अब ये छोटे छोटे हम इलाकों से, दूर दराज शहरों से, सवात से बहुत से खिलाड़ी आ गए हैं। फाटा अब क्रिकेट का एक हब बन चुका है सूबे में और खालिद उस्मान स्वाबी से हैं, यासिर शाह ने स्वाबी का बड़ा नाम रोशन किया है, कुछ दिल शाह वो बन्नू से आए हैं जो एक ज़माने में हम हॉकी से मंसूब करते थे बन्नू को, वहाँ से क्रिकेटर्स आ रहे हैं। बिल्कुल आपने बात की, पूरे सूबे के तुलो अर्ज से अब खिलाड़ी आना शुरू हैं। ये वही एक इंस्पिरेशन होती है जब आप आसपास देखते हैं कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो कौमी सतह पर परफॉर्म कर सकते हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वो रोल मॉडल बनते हैं और फिर वो सिलसिला एक चल पड़ता है। लोअर दीर से काफ़ी खिलाड़ी आए हैं, सवाबी का आपने जिक्र किया, बन्नू, और खैबर के इलाके से भी शाहीन आफरीदी, रियाज आफरीदी, आप नाम लेते जाएं और नाम गिनते जाएं और अच्छे हाथों में भी रहे हैं। अब्दुल रहमान जो है इनको भी शाबाश मिलनी चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने इस टीम को यकजा रखा है, एक ऐसा कल्चर पैदा किया है, विनिंग कल्चर
इस टीम में लाए हैं, खिलाड़ियों को एक साथ मिलकर खेलने का वो जो एक टीम कल्चर है वो इन्होंने परवान चढ़ाया। खुद भी अच्छे फास्ट बॉलर थे एक ज़माने में। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने तारिक, क्योंकि ये जो उनकी टीम कल्चर है, जो टीम स्पिरिट है, और ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक महदूद नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो ये क्रिकेट फील्ड से बाहर भी एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं और खिलाड़ियों के आने जाने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कल्चर मेंटेन रहता है। या और कोई हमको बुरी सुर्खी भी इनके मुतालिक नहीं हम देखते या हम पढ़ते हैं, और ये भी एक बड़ी गैर मामूली और बहुत मिसाली बात है। 135 5 खिलाड़ी आउट, 3 ओवर्स का खेल बाकी है। सोहेल तनवीर ने अपने 4 ओवर मुकम्मल कर लिए हैं। 27 रन दिए, आज कोई विकेट नहीं मिली उन्हें। मेहरान मुमताज़ महंगे साबित हुए, उनका आगाज़ महंगा था, बाद में अच्छी रिकवरी की। 1 ओवर सलमान इरशाद का बचा है। आमिर जमाल और उस्मान शिनवारी हैट्रिक पर होंगे। उस्मान शिनवारी, ईशान खान ने एक हैट्रिक हासिल कर रखी नेशनल T20 कप में, जो सबसे पहली हैट्रिक थी। मुल्तान टाइगर्स के लिए उन्होंने हैट्रिक हासिल की थी कराची ज़ेब्रास के खिलाफ 2004-05 के सीजन में। यहाँ वो पहले थे, क्या ये आखिरी हो सकते हैं? उस्मान शिनवारी, और इस बार गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई गई, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। हैट्रिक की परवाह किए बगैर ही शॉट खेला था खालिद उस्मान ने। यही वो सेल्फलेस अप्रोच है जिसकी हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा रूम मिल गया था, हाथ चलाने का मौका मिला, और थर्ड के फील्डर के करीब से बॉल गई दायरे के अंदर हवा में, लेकिन इतनी करीब नहीं थी कि वो कैच की कोशिश करते। रिजल्ट से मुतमईन होंगे खालिद उस्मान, शॉट से नहीं। सलमान इरशाद को उन्होंने शॉट थर्ड पर और ज़्यादा फाइन कर दिया है। नासिर नवाज भी थर्ड मैन पर हैं, लेकिन ज़रा सा वाइड। यहाँ अब ये भी सवाल पैदा होगा कि नॉर्दर्न की टीम कितने रन्स जो है, कितने रन्स के साथ वो मुतमईन जाएंगे, क्योंकि कल ज़ाहिर एक बहुत बड़ा हदफ था जिसका उन्होंने पीछा किया सिंध के खिलाफ खेलते हुए। 190 रन से वहाँ तक तो खैबर पख्तूनख्वा की टीम नहीं पहुँच सकेगी। कितने रन्स जो हैं वो केपी की मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने बनाने की अहलियत है नॉर्दर्न में। अभी तक मुकाबला बहुत दिलचस्प है इस गेंद से पहले तक। 2 की कॉल है, काफी दूर से फील्डर को आना पड़ा और आसानी से 2 रन मुकम्मल कर लिए। 16 गेंदों का खेल बचा है, और नॉर्दर्न की जो बैटिंग का स्टाइल है, अगर रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, बिल्कुल बल्ले के साथ बॉल टकराते ही 2 रन का इरादा था, कोई झिझक नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। अच्छी तालमेल दोनों बैट्समैनों के दरमियान, और उसका नतीजा बआसानी 2 रन कंप्लीट कर लिए। नॉर्दर्न की जो बैटिंग का स्टाइल है वो बड़े फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, शायद ये विकेट उनके स्टाइल को इतना ज़्यादा सूट नहीं करेगी केपी की मजबूत बॉलिंग के खिलाफ। 160 165 से ज़्यादा यकीनन वो चेज नहीं करना चाहेंगे इस विकेट पर। एक और स्लो बॉल बाउंसर, लेकिन इस बार फील्डर को पीछे तैनात किया गया है। अच्छा स्पेल रहा उस्मान शिनवारी का, क्योंकि हिप इंजरी के बाद वापस आए हैं। बहुत तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश नहीं करते रहे, अच्छी लेंथ को उन्होंने इख्तियार किया, रफ्तार में रद्दोबदल किया। अभी तक ऐसा रिदम नहीं है, लेकिन जो कामयाबियाँ मिली हैं तो ये रिदम आ जाता है खुद ब खुद ही वापस, जब आपको विकेटें मिल रही हूँ
जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, जितनी मर्जी नेट कर लें, मैच की सिचुएशन में बॉलिंग करना कि आपकी मैच फिटनेस भी आती है, रिदम भी आता है, और अगर विकेटें मिल जाएं तो कॉन्फिडेंस भी आता है। अली इमरान की अब कप्तानी देखिए, 10 में से कितने नंबर्स देंगे? अभी दूसरा ही मैच है उनकी क़यादत में। सबसे मुझे मुतासिर कौन फीचर उनकी कप्तानी का लगा कि बड़ा धीमे मिजाज के लगे हैं। कभी भी सिचुएशन में अगर मार भी पड़ रही थी पहले हाफ में, वो बिल्कुल अपना काम और कंपोजर लूज नहीं किया उन्होंने। अच्छे साइन हैं, अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, अपनी टीम को अच्छा मैसेज देते हैं। अर्ली डेज हैं, 7 नंबर तो देने ही होंगे अगर बहुत भी कम दिए तो। कल से आज उनने ज्यादा बेहतर फैसले किए हैं फील्ड में। ऐसे उठाकर खेला, मौका है उस्मान शिनवारी के पास चौथी विकेट हासिल करने का, और किसी भी मौके पर नहीं लगा कि वो ये कैच ले लेंगे। हालांकि उनके पास बेपनाह वक्त था, सिर्फ पीछे हटना था। और ऐसा पहले बार नहीं हुआ कि उस्मान शिनवारी ने अपनी गेंद पर गुहाई कैच गिराया हो। बिल्कुल, और गेंद के नीचे आ गए थे, लेकिन जो ही गेंद नीचे आई तो वो ऐसा लगा कि वो मिस जज कर गए और बिल्कुल अपने हाथों को सही पोजीशन में नहीं ला सके। यहाँ तक लगा कि वो बिल्कुल अच्छा जज कर रहे हैं, लेकिन आखिरी लम्हे पर बिल्कुल अपना तवाज़ुन खो बैठे। ये देखिए, उनका जिस्म पीछे की तरफ झुकता ही चला गया। इसका मतलब है कि वो गेंद पर नज़र नहीं रख सके। किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन अच्छा स्पेल रहा शिनवारी का। 26 पर 3 आउट किए, 2 ओवर्स का खेल बचा है। खैबर पख्तूनख्वा 144 पर 5। अब शायद वक्त आ गया है जब ये दोनों बैट्समैन हैं, ये बाउंड्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। खालिद उस्मान अच्छा शॉट खेला ऑफ साइड में 1 ही रन के लिए। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, खालिद उस्मान जो हैं बहुत ही अंडररेटेड क्रिकेटर हैं, और एक वारंटी कार्ड की तरह है इस टीम में। अगर यहाँ क्लैप्स हो जाता है बैटिंग में, ये खुद आकर सीना तान के खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी टीम को वापस ले आते हैं खेल में। इस तरह बॉलिंग में भी जब बहुत इनकी टीम मुश्किल में होती है तो ये आकर विकेटें लेते हैं। वहाँ गोल्डन आर्म का किरदार अदा करते हैं, बहुत ही आला कप्तान है। इन सब के बावजूद इनको बहुत ही सख्त कंपटीशन का सामना है इनको अपनी टीम में, क्योंकि आसिफ आफरीदी भी बिल्कुल इन्हीं खुसूसियात के हामिल खिलाड़ी हैं। 1 ही रन बन पाएगा, लेकिन उनका खालिद उस्मान के साथ इस खैबर पख्तूनख्वा की प्लेइंग 11 में आने के लिए बहुत ही शदीद मुकाबला रहता है। और जहां पर एक ने खेलना हो तो खालिद उस्मान अगर कप्तान है तो वो टीम के हक में फैसला कर देते हैं। आसिफ आफरीदी ने भी कप्तानी की हुई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खैबर पख्तूनख्वा की। काफ़ी डेप्थ है और स्ट्रेंथ है इनकी जो बेंच है और ओवरऑल स्क्वाड में। ज़्यादा रन्स नहीं बन सके इस तीसरे दिन। बड़ी हद तक इसका दोष जो है वो खुद बैट्समैनों को ही दिया जा सकता है। गलत शॉट सिलेक्शन रही, सेट होकर बैट्समैन आउट होते गए। उनका और इजाफा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है वो यहाँ 170 से आगे जा सकेगी अभी भी। यहाँ और सीज़न का बिल्कुल आगाज़ है, तो जिसे क्रिकेट की टर्म में कहते हैं विकेटें खुली हैं पहली दफ़ा, और बहुत सख्त धूप लग रही है। रोज़ाना डिफरेंट विकेट पे खेल रहे हैं। ये भी प्लेयरों की एक बहुत बड़ी आजमाइश है कि जब विकेट का बिहेवियर चेंज होता रहता है उस हिसाब से आपको अपनी खेल में, अपने प्लानिंग में, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसमें तब्दीली करनी होती है। और T20 में तो बहुत जल्दी तब्दीली करनी होती है। उठाकर खेला
एक से ज़्यादा इस बार भी हासिल नहीं हो सकेगा। अच्छी बॉलिंग नॉर्दर्न की जानिब से, दोनों बैट्समैनों को आज़ादाना नहीं खेलने दे रहे। हालांकि पिछले 28 गेंदों से ये दोनों मौजूद हैं। 34 रन की पार्टनरशिप पहले ही हो चुकी है। दिफाई चैंपियन है खैबर पख्तूनख्वा। पहला मैच उन्होंने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ कल जीता था बड़ा स्कोर किए बगैर। बॉलर्स ने खासतौर पर इमरान खान सीनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अपने आखिरी स्पेल में आकर एक हारा हुआ मैच उन्होंने अपनी टीम को जितवा दिया। इस बार फिर मौका है और आमिर जमाल ने वैसी गलती नहीं की जो उस्मान शिनवारी ने की थी पिछले ओवर में। खालिद उस्मान को उनने चलता कर दिया। तरह ये पार्टनरशिप अपने इख्तिताम को पहुंची। बहुत ही उम्दा ओवर रहा। अब तक एक भी बाउंड्री उन्होंने कंसीड नहीं की और कीमती विकेट भी हासिल की मुखालिफ कप्तान की। बिल्कुल हार्ड लेंथ थी और अच्छा कैच किया, इस मरतबा अच्छा जज किया। बिल्कुल जो पोजीशन थी उनकी वो परफेक्ट थी। साइडवेज गेंद के दौड़ते हुए बॉल पर आखिर तक नजर रखी। खालिद उस्मान ने कोशिश जरूर की, लेकिन इस विकेट पर ऐसा लगता है कि अब बड़ी हिटें लगाना इतना आसान नहीं है। 19 रन बनाकर आउट हुए केपीके 148 पर 6। मास खान आने वाले नए खिलाड़ी, पहला मैच खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट का, किंगडम वैली नेशनल T20 कप। राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, लाहौर कलंदर्स को की नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। और मैं इनके बारे में ये बात कह सकता हूँ कि ये भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। ये अनाड़ी नहीं है बल्ले के साथ, और इसलिए फिक्र होगी अली इमरान को। और उठाकर खेला, गेंद गैप में गिरेगी। 3 फील्डर्स माइल हुए थे। रन्स मिले। हसन नवाज ने गेंद का पीछा किया और अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा। आमिर का सिर्फ उन्होंने 5 रन दिए पेनल्टी ओवर में और 1 विकेट हासिल की। अब 6 गेंदें इस इनिंग्स की बाकी रह गई हैं। 150 पर 6। भाई आप भी अंदर रहो, सिर्फ कुछ जाने दो। मिडल परफेक्ट, राइट आर्म ओवर द विकेट। 2 स्टंप्स का गार्ड लिया है माज खान ने। हालांकि आमतौर पर जो आखिरी नंबर्स के बैट्समैन होते हैं, टिपिकल जो टेल एंडर्स होते हैं, वो ज़्यादा अंपायर्स को ज़हमत देते नहीं हैं। खुद ही बैटिंग क्रीज पे पहुंचते वो शुरू हो जाते हैं। क्लब क्रिकेट में तो अंपायर्स को भी देखा है कि वो भी जहमत नहीं करते। जहां पे भी बल्ला रखते हैं बैटर्स, वो वहीं पे गार्ड दे देते हैं। लोअर ऑर्डर बैटर्स की बात कर रहा हूं। मिसफील्ड, काहली का मुजाहरा किया लेकिन नुकसान नहीं हुआ टीम को। माज खान ने खासी मायूसी जाहिर की जब दूसरे रन के लिए सर्वर मुड़े नहीं। ये वो विकेट देखिए, पुल करने की काफी देर से कोशिश कर रहे थे और आखिर में जब गेंद बल्ले पर लगी तो ज्यादा ऊपर चली गई। सरवर आफरीदी उस तरह की हिटिंग नहीं कर सके जिसके लिए शोहरत रखते हैं।
क्योंकि लेंथ इनको देने पर आमादा नहीं है। अच्छे यॉर्कर्स का बराबर इस्तेमाल होता जा रहा है। जरा सी फिक्र है, फिक्रमंद चेहरे अभी हमने देखे थे खैबर पख्तूनख्वा के डग आउट में। आहिस्ता गेंद थी, विड्थ मिल गई लेकिन बाउंड्री नहीं मिलेगी। फिर मना कर दिया सरवर आफरीदी ने महाज खान को, उन्हें वापस जाने पे मजबूर किया। दूसरा रन यहाँ पर दस्तयाब था लेकिन वो खुद खेलना चाहते हैं कि वो काफ़ी देर से सेट हैं। ये अच्छी टेक्निक नहीं है महाज खान की, बिल्कुल ब्लाइंड टर्न उन्होंने लिया, बिल्कुल भी नहीं देख सके कि बॉलर फील्डर के हाथ में बॉल है या नहीं। ऐसी टेक्निक जो यंगस्टर्स को नहीं अपनानी चाहिए। और ये अच्छा शॉट, ये शानदार छक्का, इस बार इसे फुल टॉस पर ले लिया। निहायत उम्दा लेफ्ट शॉट खेला सरवर आफरीदी ने, जिनकी शोहरत है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर छक्के लगाने की। अलबत्ता इस बार उन्होंने फाइनल लेग का इंतखाब किया। मात दे दी उन्होंने सलमान इरशाद को। यहाँ उनकी हिकमत अमली को पहले से भांप लिया था लेकिन एक्सिक्यूशन बहुत ही जबरदस्त थी और पर आखिर तक नजर रखी। रैंप शॉट, सलमान इरशाद को उन्होंने मजबूर किया इस चीज पर कि आप बिल्कुल यॉर्कर नहीं करा सकते, आपको अपनी गेम प्लान बदलनी होगी इन आखिरी 2 बॉलों में। और बोल्ड कर दिया, बिल्कुल पिन पॉइंट, कमाल यॉर्कर सलमान इरशाद। इस बार ज्यादा अच्छी लाइन और उन्होंने गेंद फेंकी और कामयाबी हासिल की। सरवर आफरीदी जो अब हर गेंद पर बाउंड्री लगाने के मूड में थे, इस बार पीछे हटे, रूम क्रिएट करना चाहते थे लेकिन इस यॉर्कर को उन्होंने अपनी मिडल स्टंप पर खेल दिया। फौरी हिसाब चुकता किया सलमान इरशाद ने। अच्छी कंट्रीब्यूशन सरवर आफरीदी की, 24 रन बनाकर आउट हुए। एक गेंद का खेल बचा है, 159 पर 7। ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद खैबर पख्तूनख्वा की इनिंग्स जैसे मांद पड़ गई हो, विकेटें बार बार गिरती चली आई हैं। अस्सी अरशद आए हैं खेलने को, दफे की गेंद का मौका है उनके पास। राइट आर्म ओवर द विकेट आएंगे इस इनिंग्स को समेटने के लिए। सलमान इरशाद फार एंड से उठाकर खेला, एक बार फिर विकेट मिल सकती है और पीछे को जाकर अली इमरान ने ये कैच मुकम्मल कर लिया और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की इनिंग्स का भी इख्तिताम हुआ। 159 उनका आखिरी स्कोर है 8 विकेटों के नुकसान पर और इस वक्त ज्यादा खुश कप्तान अली इमरान होंगे, जिनकी क़यादत में इस टीम ने बहुत ही अच्छा फाइट बैक किया। एक मौके पर लगता था कि बाजी उनके हाथ से निकल जाएगी, कैच को तो बिल्कुल हाथ से नहीं निकलने दिया अली ने। बिल्कुल, और अच्छे मोमेंटम के साथ इनिंग का खात्मा किया नॉर्दर्न की टीम ने। पहले 10 ओवर्स में 83 रन थे और उसके बाद आखिरी 10 ओवर्स में 8 विकेटों का नुकसान हुआ और ज़्यादा रन भी नहीं बने, तो ये मोमेंटम ज़रूर नॉर्दर्न की टीम के साथ जाएगा। अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग और अच्छी कप्तानी यहाँ पर अली इमरान की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा मायूस होंगे स्कोर से, लेकिन इस विकेट को देखते हुए ज़्यादा बुरा स्कोर नहीं।
जैसी कारकर्दगी दरकार है ये मैच जीतने के लिए। उस्मान शिनवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अपनी टीम को फाइट बैक कराया। बहुत बहुत मुबारक हो। शिनवारी साहब, कुछ बताइए अपनी आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस के मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। एक अरसे बाद मैं क्रिकेट में आया हूँ, क्योंकि मुझे एक हिप बोन में स्ट्रेस फ्रैक्चर था। रिहेब के ज़रिए मैं वापस आया हूँ। तो कल मैं पहला मैच खेल रहा था, एक अरसे बाद ग्राउंड में उतरा हूँ, मुश्किल था। कल का मैच खेल के थोड़े से डाउट्स क्लियर हो गए थे, तो आज थोड़ी सी डायरेक्शन मालूम हुई थी कि यार किस डायरेक्शन में मैंने जाना है, कौन सी वीकनेसेस है जो मैंने वो हटा के अपने स्ट्रेंथ पे रहना है। तो इसी पे अप्लाई किया और अच्छी बॉलिंग हुई। तो कुछ बताइएगा, ये एक तरह से नया कॉम्बिनेशन है जो नॉर्दर्न की टीम में हम देख रहे हैं। कप्तान भी नया है, तो अब टीम जेल हो रही है ऐसा ऐसा? जी बिल्कुल। पहला मैच था जिस तरह कल, तो कैम्प में भी हमने इतने ज़्यादा दिन नहीं गुजारे, तो हमें पता लगा है कि यार कौन सी जो थोड़ी बहुत हम मैचिंग जो टीम के लिए अच्छा है उसके साथ हम जाएं खेल ले। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अभी भी हमारी जो कम्बिनेशन है वो बनी हुई है। और उमर अमीन को मिस करे जो हमारे कैप्टन है, लेकिन जो हमारे यंग कैप्टन है अली इमरान, वो भी अच्छा संभाल रहे ग्राउंड के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, आगे जितने मैचेस होते जाएंगे इंशाल्लाह विन के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी टीम उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आज विन के लिए क्या करना होगा आपके जो बैट्समैन हैं, क्योंकि जो बॉल है अब आपकी बैटिंग की कोर्ट में चली गई? बिल्कुल, अगर आप टारगेट को देखें तो 160 टारगेट है, तो मेरे ख्याल से 120 बॉल पे 160 करना, आपको इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम जाते बिल्कुल एक प्लान के साथ और विकेट उनको अर्ली ऑन हम विकेटें नहीं देते, तो इंशाल्लाह ये रन चेज़ आसानी से हो जाएगा। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शिनवारी, आपने आज बड़ी आला बॉलिंग का मुजाहरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 160 रन चाहिए हैं नॉर्दर्न को कामयाबी हासिल करने के लिए। नॉर्दर्न की बैटिंग आप देख सकेंगे एक वक्फे के बाद।
Welcome back and a good afternoon from the Pindi Cricket Stadium. It's all to play for. It's match 6 of the Kingdom Valley National T20. 160 is the target for Northern to win this match. Up till now, as we know, in the past 5 games, sides batting first have won it. And today it's a good opportunity for Northern to break this trend if they can bat sensibly. Because it's not a big total. You know that these pitches can produce good runs. You got 4 for 27 in the previous game. Imran Khan Senior, player of the match. And here are the 2 openers. 2 youngsters have come out. Huraira and along with him Hassan Nawaz, it seems like. Hassan Nawaz has been in good touch. Huraira, we've seen the last of him. That big knock in the Azam Trophy. It's all to play for in this game, as Marina is alongside me. And the first thing I'd like to know from her, what does she feel in this match? Leaving the trend out, who has a upper hand in this game? Well, if you look at the batting lineup of Northern, you've got a lot of players who can stand out. They love to play their shots. Huraira is back, Rohail is back in the side. That definitely applies some stability in terms of building an innings. And you need someone like him or Rohail who can just anchor the innings towards pacing it down. But on the other hand, it's not going to be easy because they've got experienced bowling lineup of KP. You gave me every aspect, but you didn't tell me who has a better chance. You're becoming Tariq Saeed now. So in my opinion, I feel that if Northern oh, that's can interesting. keep some sense prevailing, they have a fair chance to win it. Well, let's have it then. I say KP when you were with Northern. 160, 8 runs and over. Ready, guys? So for all our viewers and the people who are watching this, Faisal Afridi says play. I say KP. She's saying Northern. It's going to be interesting. In the air, catch it is a call. Will go over mid-off comfortably. In fact, it'll go to the boundary after a couple of bounces. Good positive start. That's what he's capable of. He'll come out, he'll pick his moment and go for the shots. Again, it was uppish, not that in control, but weight transfer. Getting on to the front foot, back foot in the air. Managed to transfer enough weight on it, clear the infield for boundary. Just opens the face. That's smart batting. It'll race away hip in the outskirts, and the boundary area is quite quick. Grass is nicely shaved off. This had timing, nothing about power. It's almost like a replay from first game. Again, the length, angling it. Imran probably just pulling back a length ever so slightly, and that allowed to pierce that gap. He's a classy player to watch. I hope he gets their big innings here. First one was a length ball, and then he pulled it back a touch. Got hit behind the square on the offside. So what's he going to bowl now? He needs that swing, Imran Khan Senior. Push it up a little. That's more like it. Hesitant single there. He was a touch expensive yesterday as well in his first spell. It's only when he came back with the older ball he started getting purchase. And ended up with 4 overs, 4 for 27. Imran Khan Senior. Oh, that's a good delivery, just angling in. Played with soft hands. There was a single, always a single. Having a chance at the non-striker Huraira. It's the margin of error for fast ball, especially on surfaces like these ones. So little, anything outside of error in length that can perish into the boundaries.
Nice shot. Now is his protection there. Went for 20 in his first 2 overs. Imran Khan Senior yesterday. Then he pulled things back. Both youngsters playing their second T20. Hassan Nawaz and Herrera. Early days, but they have a fair idea of this bowling attack because they played it in different formats. Well, if KP watched the first game between Northern and Sindh, the Sindh bowlers kept everything into the stumps and they pitched it up. They managed to get early breakthroughs, forcing them to play false shot. Maybe that can work for KP as well. Like to see a sensible and a planned chase here. We've seen so many times sides chasing in these past 5 games, messing it up. Up to the 10th over, everything is control. Even if you look at this match, 83 for no wicket for KP, and then they started going down. 114 for 5 in around 13th, 14th over. Then managed 159. Last ball of the over. Good to see those singles inside the circle. They finish off with 12 of the over. It's 12 for no loss. Right arm over the wicket. Captain has pushed him down to number 3, I suppose. Sir, next arm. Next arm. Arshad Iqbal will have the new ball for KP from the far end. All 3 good. 21 years of age, and he's got fairly good experience now. 43rd game in T20s. He's had a fair share of backed house T20s, and of course with just planes flying above. Only he heard something. It was double-minded. Herrera just a casual swing outside off them. Taking it into the surface a bit. Well, they've got 7 potential bowling options, KP. So a lot they can rotate about. Quick single again. That's a good thing to do. Put the pressure on the field, as the captain of the fielding side would be livid. The singles coming in nice and easy when you've got 5 men inside the circle on the offside. Excellent from Herrera. He reads the game well. He has a very smart head on his shoulders. Then on the other hand, he loves to go after the bowlers. But he too would love to build an innings here. The best thing about these soft hand singles is that it pushes the fielders to come few meters in the circle, creating those gaps for boundaries. It's in the air, where he's deliberately played that. The lengths are the key here. It's a good batting track. It's about the length, especially with the new ball. If you want some purchase, you've got to bring them out. That left leg has to come out for that drive. Again, off the back foot. Usually, if you notice, Marina, he likes to play standing tall. Even his drives are like back foot punches. Stays within the crease. That gives him a little bit of extra time to play on the up shots. The ball come closer.
most of these young batters, they love width. They love to go anything outside off stump. They'll slash their bats. Hard lengths, they would love to play lofted shots. Not that easy, especially against Arshad Iqbal. Play on the up, so you have to make up your mind and let the ball come near to you. Otherwise, if you're going to reach out for that drive, you might have to pay for it. In the air, but again would clear mid-on. He'll go one bounce. Boundary. Good tactics, attack the opposition. Just rattle them for a bit in the power play. He's not going to hold back. Just a step down, created that length through the line. You could hear that cracking sound coming in. Arshad Iqbal saw the movement, had to adjust his length, and that exactly allowed to play the shot freely. He's always going to come after the bowlers. He'll try to finish off well, Arshad Iqbal, last ball. 7 of the over till now. Banging it in. 19 for no loss. On batting, boys. Bat on, bat on. Yeah, that's more like it. Like to stay within the stumps, fuller length. Let's have a look at what he did yesterday. 4 for 27. Marina, impressed? Definitely. It wasn't going to be an easy win for KP, but he managed to bag those 4 wickets. And what he does is he's very smart operator. He utilizes the line, the length, the short deliveries, pace off the ball. And you have got recovered. Allows you a little bit more freedom to experiment differently. That length actually worked for him. Oh, what a catch! What a catch! Back foot point, server takes an absolute blinder. That ball was traveling, I tell you. Unbelievable from Mohammad Server. It was traveling for sure. Huraira middled it. For a moment you thought that's a good shot, but no. Someone is standing between that boundary and ball, and that was Server. Have a look at that. Airborne. Grabbed it into seconds. That exceptional catch. Huraira would be a little unfortunate here, but you need something special when you're defending. And KP has done that. Huraira, I think that they're probably checking for that catch. Might spoil the moment though. I think it was great effort, but let's have a look at that. No ball, no problems there. And I think the other angle will show how stunning this catch was. Traveled flash into a flash and one-handed. It did bounce, but have a look at that. What an awareness. He's managed it. Managed to take hold of it. Good catch. Huraira will now, unfortunately, have to walk back. But that was some special effort from Mohammad Server. Huraira gone on 4, Northern 19, 1 down.
Nasir Nawaz, the new batsman. So 2 Nawaz at each end now. All of them are opening batters. Whether you talk about their captain, Ali Imran, or Herrera has just been dismissed. Nasir Nawaz, Hassan Nawaz, they just refuse to go any further down in the order. All the new ball players. I got it right above that knee roll. There's a hint of inquiry from the bowler. That's the catch. The timing of the dive. It's airborne, horizontal. It's all about the timing. If you don't time that dive, there's no way you'll get there. Imran Khan Sr. is lucky. That was racing to the boundary. That's how good the pitch is. Slight room. You can trust that bounce. You just throw your bat at it. Change in field. Push back the mid-wicket. Third man comes into the circle. I have a feeling something's got to give. Something's going to happen. Something's going to happen. He's missed it. And it's gone for 4. Imran not happy. Why should he be? He's the bowler. He was in the air for a while. I think the fielder did his best. Zada Farhan there. He rushed it. But really couldn't really manage to get underneath it. It wasn't middle, it was just chipped in. The last moment he thought he's not going to get that catch. Tried to finish. Losing the boundary, but really couldn't do that. Yeah, that angle showed us he never reached it. He was just trying to stop the ball, block the ball. Nasir is playing with fire. This time, opportunity again, and just lands in a vacant zone. And one shot too many. Probably just get a feeling. He needs to choose the deliveries for those shots. Short one goes for that very half-hearted pull. I think he really didn't anticipate the bounce. Probably was trying to nudge it off the hips. Not really a horizontal bad shot he applied there. But something's happening, as you said. We can hear shouts of catch it every now and then. Just the early nerves for Nasir Nawaz. Yeah, I'd still have a feeling. One more ball to go. Something might just happen now. Nicely done. The chase is not going to be of any good. They'll race away. 4 to end the over. This over gives them 10. It's 29 for 1. Plenty batting to come for Northern. That's the last delivery of the last over. Just outside off stump. Wasn't never on the front foot. Wanted to pierce that gap. Rolling his wrist. Well, width is going to sting the bowlers like B. He's disappointed. Could have done better. Yeah, you just get a feeling he's better off staying within the stumps around the off stump because he's not express fast. He allows the batsman at ease to just place it between third man, backward point, opening the blade. He will make you work hard. Again, that's a gamble, bringing Mohammad Imran in the power play. Because he's the kind of bowler who doesn't offer you pace, and we talked about it at length yesterday, that it becomes difficult to clear the boundary with his pace.
which means you need more fielders in the deep, but this is the power play. So it's only two. One is a deep square leg, and the other one is hiding somewhere. Yeah, he's wideish third man. So at the moment in front of the square, all Hassan Nawaz needs to worry about to clear the circle. Then he's good. Well, I think it can go either way because Hassan and Nasir both love to time the ball. They like pace. Oh, just lucky he didn't chop it on. And when it's not there, they would try to enforce a shot. We've seen them, they're not comfortable in that zone. But that gamble can actually work for KP. And then Nasir, they both have to come on the ballers and hit them hard. You see, the smarter ones will hold their shot a fraction of a second more and then produce more power behind that shot for it to clear that circle, because they know that the ball is not going to hurry onto them. He's eyeing to play somewhere on the onside. Yeah, he'll attempt everything. That's a quick one though. Sharp bouncer, wide call by the umpire. Yeah, tough. We'll get a better picture of it side on. That was a good delivery. Surprised him. Was never expecting that. Well directed. Fair call. Faisal Afridi. Leg umpire. You see that, how he waits for that and then tries to hit it hard. It'll be tough to get him away. At that length, you have to be very careful. Usually likes to slam it into the leg side, anything outside off stump or even on off stump. You manage to get past the fielders. Would be more ideal to just keep him within the stumps, pitch it up a little bit. Don't allow him to get underneath that length to loft. Yeah, you bowl bad lines, that'll go away. The margin of error is slim. You're bowling a good over, then just you offer a freebie. He's got good hands, the bad speed. He's standing and helping it on its way. With that field, it was bound to travel to the boundary. Well, that's your fault, boy. Providing Northern a solid platform here in chase of that 160 to win this match. First, if it's done by chasing. Again, a slower one. Catch it is just over mid-off. And another boundary. Hassan Nawaz looking to finish this off quick. 28 or 14 for him now. Mohammad Imran Jr. again, the length, that's the issue. It's a free hit for Hassan Nawaz. He'll go after it because there are no fielders. Back of the hand. He had enough wood on it that it traveled to the boundary. And probably the length, that's issue for Imran Jr. I haven't seen Hassan Nawaz driving the ball on the front foot. That's one area we're not sure how vulnerable he is. Yeah, for that they'll have to pitch it up. But both Mohammad Imran, Arshad Iqbal, they're banging it in. This time he does. Saw him making room, ball it full and wide. 38 for 1.
marshalling his men, Khalid Usman, and bring himself into the attack to further slow things down. Still 2 overs to go in the power play. Well, maybe spin will do the trick with a long off in place and a deep mid-wicket. And probably Khalid will toss it up, asking the batsman to take him on. Plenty of protection towards the offside. One in the ring, just long off there. Hesitation, non-striker end, wrong end from the fielder. Because the striker took off very late. That's what Khalid Usman is wondering. Why is the fielder not listening to his call? He wanted the bowler's end. They need to take these chances. That was clearly a huge misunderstanding. Had he thrown towards the bowling end in time, might have created the problem. Look at that. He had ample time to aim that stumps. Catcher is the call, but again it just lands. I don't know for a moment. Both the fielders were a little confused who's actually going for it. But still, you can't blame the two because it's landed perfectly between the two. Yeah, Amir was back at the boundary. Probably he could have gone for that. Farhan, who had to run back from mid-on, always going to be difficult for him. You can sense that uncertainty in Northern's batting. Still Nasir and Hassan Nawaz not sure how they would like to go about this chase. Have a look at that. Zada is on mid-on. Oh, he's gone, I think. That's a very unlucky way to go. Nasir Nawaz, third one, and KP will all be delighted. The good thing about Khalid is he's following the batsman. He's trying to make room, is going down from between the legs. It's a good catch taken by Haris. I tell you, he's blinded. He's just following the line of the ball. And the captain strikes. So the spin tactic works. And Northern are 40 for 2. नॉर्दर्न के लिए अच्छी खबर यह है कि रोहेल नज़ीर ये फिट होकर वापस आ गए हैं और दस्तयाब हैं नंबर 4 पर खेलने के लिए। आज विकेट कीपिंग भी की। एक पार्टनरशिप यहाँ से चाहिए होगी। हसन नवाज अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं नासिर नवाज ने एक और मौका ज़ाया किया। और ऐसा शाज़ो नादिर ही देखने को मिलता है कि इनसाइड एज गेंद जो है आपकी दोनों आपके घुटनों के दरमियान से चला जाए विकेट कीपर की तरफ। या बहुत ही शानदार कैच लिया है हारिस ने। यही वजह है कि ये पाकिस्तान के बैकअप विकेट कीपर इंटरनेशनल साइड के। बहुत ही शानदार ग्लव वर्क है इनका। फेंड किया एक और रन के लिए। तो पाकिस्तान टीम के साथ जो इन वक्त गुजारा, ये उन दिनों भी इनकी विकेट कीपिंग बेहतर हुई है, क्योंकि पिछले 1-2 बरस में ज़्यादातर
जो अफरीदी थे, रेहान अफरीदी, वो विकेट कीपिंग करते थे। इनकी जगह नहीं बनती थी कायदे आज़म ट्रॉफी की टीम में भी, लेकिन इनकी विकेट कीपिंग जो है वो बहुत सुधरी है। ग्लव वर्क, इनका फुटवर्क, अभी इन्होंने जो हॉलैंड के दौरे में विकेट कीपिंग की वो लाजवाब थी। शादाब और नवाज की स्पिन बॉलिंग पर, पेसर्स पर भी खासी मूवमेंट मौजूद थी उन डच पिचेस में। पैड को फ्लिप करती हुई गई, लेकिन खासी बाहर थी लेग स्टंप लाइन के। ये बॉल लेग स्टंप की तरफ जाते हुए और क्लियरली पैड से टकराते हुए बॉल वापस गई। फील जरूर की थी अरशद इकबाल ने, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई वो अपील थी। और इसकी आप बात कर रहे थे, अब जो विकेट कीपिंग का जो शोबा है ये अब ऑलराउंडर कैटेगरी में आ गया है कि आपको अगर बैटर भी अच्छा होना है, विकेट कीपर अच्छे होने के साथ साथ, और एक वो ऐसा शोबा है जिसमें इनको थोड़ी इंप्रूवमेंट लानी होगी। क्योंकि 5वें और 6ठे पे अगर ये बैटिंग करना चाहते हैं वनडे में या T20 में, थोड़ी इंप्रूवमेंट पावर हिटिंग में लानी होगी। स्कोर कट करने के लिए गए रोहेल नजीर। अच्छा पेसी बॉल था, पेस से बीट हुए। शायद इसी डिसअपॉइंटमेंट है कि शॉट ऑन था, थोड़ा लेजी आया बॉल पे, वजह से बीट हो गए। ये इम्तिहान अरशद इकबाल के साथ नॉर्दर्न के यंग बैटर्स का होगा, क्योंकि बाकी बॉलिंग अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा इफेक्टिव हमें नज़र नहीं आते हैं। ये ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनके साथ इनका अच्छा मुकाबला होगा। इमरान खान ने विकेट ज़रूर हासिल किए आखिरी मैच में, लेकिन जो थ्रेट अरशद इकबाल हैं, केपी के बेहतरीन बॉलर हैं। यहाँ लंबे कद के जितने भी बॉलर्स ने यहाँ बॉलिंग की है उनमें नुमायां रहे हैं अरशद इकबाल, क्योंकि हिट द डेक बॉलर्स में इनका शुमार किया जाता है। इनके पेस, बाउंस, खासतौर पर बाउंस इनको पसंद है, अच्छा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, लंबे स्पेल करने के आदी हैं अरशद इकबाल। और अब विकेटें लेने का आर्ट भी इनको आ गया है हर तर्ज की क्रिकेट में। लेकिन ये अच्छा मुकाबला है ये अरशद इकबाल का हसन नवाज के साथ, जो कि उतने ही आला स्ट्रोक प्लेयर हैं। वैसे हुक किया, कोई फील्डर नहीं है, फाइन लेग बाउंड्री पर, और गेंद आवाज से बातें करती हुई निकल गई बाउंड्री के बाहर। जहाँ वो कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और यहाँ पे एग्जैक्टली हसन नवाज की बड़ी ब्रेव शॉट थी, शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, और अच्छे तरीके से टाइम किया, प्लेसमेंट भी कमाल की रही। हवा में ज़रूर था लेकिन फील्डर से बहुत परे था, 6 रन हासिल किए। ये बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट इनिंग है हसन नवाज की जानिब से। 6 ओवर्स के बाद 48 पर 2 नॉर्दर्न। नॉन पावर प्ले जो मरहला है वो शुरू हो जाता है। अभी अंपायर फैसल अफरीदी ने इसका इशारा भी दिया। अच्छी डिलीवरी थी इस बार, आम बॉल, बाल बचे। रोहेल नजीर बिल्कुल रीड नहीं कर सके। खालिद उस्मान एक बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं, अपनी पेस को बहुत शानदार तरीके से वेरी करते हैं। एक बार फिर थोड़ा हवा में छोड़ा बॉल था, थोड़ा स्लो बॉल किया, अंदर की तरफ आया, शायद कहेंगे हम सीधा रहा एंगल के साथ। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो स्पिनर थे नॉर्दर्न के, उन्होंने लेट डाउन किया था किसी हद तक अपने बॉलिंग अटैक को, और कप्तान को खालिद उस्मान में ये अहलियत मौजूद है कि वो इस पिच पर दोनों टीमों में फ़र्क साबित हो सकते हैं। आज के पहले मैच में भी स्पिनर्स का बोलबाला रहा था। हाँ, अगर हम कंपेयर करें तो शायद जो केपी के स्पिनर्स हैं इनमें तजुर्बा ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है थोड़ा। खालिद उस्मान का आपने भी जिक्र किया,
माज खान को आज शामिल किया, बहुत ही नौजवान उभरते हुए लेग स्पिनर हैं। तो एक बहुत अच्छा एक लर्निंग कर्व है हसन नवाज जैसे बैटर के लिए, रोहिल नज़ीर के लिए, कि आप अगर बड़ी टीम केपी की टीम के अगेंस्ट रन्स करते हैं और ये मैच जिताने में कामयाब होते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। ये वो शॉट जो हसन नवाज ने खेला, अच्छा शॉट था, पूरी पेस के साथ ही चलता चला गया। इस बार बैटर पैड साथ मिलाकर खेला रोहिल नज़ीर ने। अभी तक उन्होंने स्वीप शॉट इख्तियार नहीं किया है। स्वीप के लिए एक फील्डर को पीछे लिया हुआ है खालिद उस्मान ने। गो टू शॉट है ये स्पिनर के खिलाफ रोहिल नज़ीर का। 7वां ओवर जाता रहा जिससे सिर्फ 3 रन आए, 51 पर 2। ये पावर प्ले पहली गेंद से हावी होने की कोशिश की हसन नवाज ने, जब उनने 2 चौके लगाए एक के बाद दीगरे। इमरान को हुरैरा का ये बड़ा ही आला कैच लिया, वहां पर आफरीदी ने। हसन नवाज जो हैं ये रुकने को तैयार नहीं, लेकिन नासिर नवाज दूसरे तरफ उनका साथ छोड़ गए। हसन नवाज 37 रन के साथ काबिल जिक्र हैं। बड़ी नजरें लगी हुई हैं। मैं यहाँ ये देख रहा था, हमारे दाएं जाने जो एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ पर लोग बताया गया है कि ज़्यादातर इनकी बैटिंग देखने के लिए आए हैं। अभी ये बिल्कुल नए नए हैं, इनका पहला सीज़न है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली, लेकिन इनको पुरस्कार मिल गए हैं हसन नवाज को। माज खान अब बॉलिंग करेंगे। विलियर्ड से राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, ये भी PSL फेम है माज खान। यहाँ लाहौर कलंदर्स ने इनको पहली बार आइडेंटिफाई किया था और आहिस्ता आहिस्ता अब रीजन क्रिकेट की तरफ आते हुए माज खान अच्छे बॉल करते हैं। गुगली बहुत शानदार तरीके से करते हैं, वैरायटी भी है, फ्लिपर भी कर लेते हैं। काफ़ी प्रॉस्पेक्ट हैं ये, काफ़ी पोटेंशियल है इनके अंदर। लेकिन हम अगर वापस हसन नवाज की बात करें तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा शोहरत पा ली है इन्होंने, जैसे आपने कहा, और बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी बहुत इंप्रेस किया इन्होंने। और आई एम श्योर नॉर्दर्न के सिलेक्टर्स को भी किया होगा, जो नॉर्दर्न की मेन साइड, बड़ी साइड में इतनी जल्दी जगह बनाने में कामयाब हो गए। और मैं चाहूँगा कि ऐसे मैच केपी के अगेंस्ट ये मैच जिताने में कामयाब हों। बैट से लगती हुई गई, लेकिन बिल्कुल स्टंप्स का जो सेट है मिस कर रही थी। हवा में ये तेज है, इतना ज्यादा वक्त देते नहीं है बैट्समैन को कि वो आगे बढ़कर शॉट खेल सके। इस बार गैप में खेल के 1 रन हासिल किया रोहिल नज़ीर ने। बहुत ही हार्टनिंग है ये 2 यंगस्टर्स हसन नवाज और रोहिल नज़ीर की ये पार्टनरशिप, क्योंकि आप बड़ी टीमों के खिलाफ रन्स करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका नाम भी ज़्यादा बनेगा। और हसन नवाज की हम बात कर रहे हैं, लिया से इनका ताल्लुक है। बहुत सारे क्रिकेटर्स अब साउथ पंजाब की तरफ से भी अब सामने आना शुरू हो गए। अली माजिद शाह को आगे हमने देखा, शहजाद भी डीजी खान से उनका ताल्लुक है। बार आगे बढ़कर खेला लेकिन रन नहीं मिल सकेगा, पिच से दूर रह गए थे हसन नवाज। ये क्रिकेट खेलने की गरज से लिया से आए थे यहाँ इस्लामाबाद में, और इस सीजन में दरअसल अच्छा बाउंस मिला। स्वीप शॉट खेलने से खुद को ज्यादा देर बाज रख नहीं सके रोहिल नज़ीर। तो यहाँ जो PCB के सेलेक्टर थे इस साल, जब वो निकले थे टैलेंट हंटर्स से, जिनमें एजाज अहमद जूनियर थे और समी न्याजी, तो उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के लिए इनका इंतखाब किया था, क्योंकि एक क्लब मैच में इन्होंने इस्लामाबाद में 300 रन बना दिए थे इस सीज़न में। तो क्लब सर्किट में इनकी शोहरत हो गई थी, और बाद में कश्मीर में भी जाकर इन्होंने बहुत क्लब क्रिकेट खेली, वहाँ भी इनकी सेंचुरियों की शोहरत थी। इस पर बात होगी अगले ओवर में 53 पर 2। मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर आज ज्यादा करीब से
वो ये टैलेंट देख रहे हैं और ये खराब शॉट खेल बैठे। और ये बदकिस्मती है कि चीफ सेलेक्टर की मौजूदगी में ऐसा शॉट खेल दिया। यहाँ हसन नवाज ने हावी होना चाह रहे थे खालिद उस्मान पर, जो बड़ी नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं, और दूसरी कामयाबी उन्होंने हासिल की और नॉर्दर्न की टीम अब मुश्किल में घिर गई है। रश ऑफ ब्लड, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इस तरह के एक्सपेंसिव शॉट खेलने की। खालिद उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर को अगर आप अगेंस्ट स्पिन खेलने जाएंगे, और ये बहुत स्मार्ट ऑपरेटर हैं, इतने आराम से आपसे हिट खाएंगे नहीं। अच्छा आगाज़ मिल गया था, उसको सिर्फ कंटिन्यू करना था हसन नवाज की जानिब से, लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई होगी नॉर्दर्न कैंप में, और जैसे आपने कहा जब चीफ सेलेक्टर मौजूद हों तो आपको उनको इम्प्रेस करने के लिए लंबे रन्स करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी विकेट गवा बैठे। 53 पर 3 नॉर्दर्न। अली इमरान जो कि नॉर्दर्न की कप्तानी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, उमर अमीन की गैर मौजूदगी में। वैसे तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं ये, लेकिन यहाँ पे ये 3 से 4 ओपनर्स टीम में शामिल किए गए हैं, तो खुद 5 नंबर पे आए हैं। स्ट्राइक रेट अच्छी है, 139 की, बेस्ट 65 रन है, 650 बना चुके हैं इस लेवल पे। लेकिन यहाँ पे रोल डिफरेंट है मिडिल ऑर्डर में खेलने का। एक क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलनी होगी इनको। यहाँ टीम की ज़रूरत के मुताबिक ये इन्होंने खुद को डिमोट किया है। ओपनिंग बैट्समैन थे, और क्योंकि जानते हैं कि ज़्यादातर ओपनर्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं थे पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नॉर्दर्न के लिए, तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपनी पोजीशन को। दरअसल टीम की खातिर एक कप्तान की हैसियत से एक ख़राब शॉट खेला, अगेंस्ट द टर्न खेलने को गए, गलत शॉट का इंतखाब करने वाले ये पहले खिलाड़ी नहीं है हसन नवाज। ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो बैट शॉट सिलेक्शन पे ही आउट हुए हैं। और जब आपका इतना नाम बन जाए, चीफ सेलेक्टर मौजूद हो, तो आपको इज्तनाब करना चाहिए इस तरह की शॉट्स मारने के। ये वाइड बॉल हो जाएगा क्योंकि आगाज आपकी इनिंग को अच्छा मिल गया है। मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया था, अब आपने थोड़ा कंसिस्टेंट रह के थोड़ा लंबा खेलना था, और जैसे जितनी देर वो क्रीज पे रहते रन आते रहते और नॉर्दर्न की उम्मीदें जरूर रहती। यहाँ पे बैकफुट पे हो गए हैं नॉर्दर्न। ये सईद बिन नासिर का मुझे याद है, वो हमारे कराची के बैट्समैन थे और बहुत रन्स बनाया करते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। यहाँ तेजी के साथ ये रन हासिल किया अली ने, तो उम्मीदवारों में से थे पाकिस्तान के लिए, वो टेस्ट खेलने वाले थे। अब्दुल कादिर जब चीफ सेलेक्टर थे तो वो उनका मैच देखने के लिए गए स्टेडियम में, तो जाते ही उन्होंने रैश शॉट खेल दिया, तो जाहिर है कि चीफ सेलेक्टर ने उसका बहुत बुरा मनाया था और फिर कुछ जगह मिली नहीं। कई बार हो जाता है। अजहर अली को मौका मिल गया था, 9 ओवर्स मुकम्मल हुए, 57 पर 3। सेंटर मांस के खा इमरान भाई लग बात इमरान भाई लग शाबाश। मास खान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, 2 रन्स दिए थे पहले ओवर में। अभी आप सईद बिन नासिर का जिक्र कर रहे थे, तो बहुत ज़रूरी होती है, किस्मत का हाथ भी होता है क्रिकेट में कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे रन्स करते हैं, और शायद यहाँ पे भी वही हुआ है हसन नवाज के साथ कि चीफ सेलेक्टर मौजूद हैं और आपको अच्छा आगाज़ मिल गया, फिर आप रैश शॉट मार के आउट हो गए, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमें यहाँ नजर आई हैं
लेकिन अभी बहुत जल्दी है, बहुत इनका आगाज है इनके करियर का, बहुत मौके आएंगे क्योंकि टैलेंट मौजूद है, स्किल मौजूद है, सिर्फ पॉलिश होने की देर है। जितनी जैसे क्रिकेट खेलते चले जाएंगे, पॉलिश होते चले जाएंगे। लेकिन हमें यही भी नहीं भूलना चाहिए कि ये तो बिल्कुल नौवारिद हैं और शायद इनको दूसरे एंड पर एक ऐसी मदद की ज़रूरत थी, किसी एक तजुर्बेकार खिलाड़ी का साथ चाहिए था, जिस तरह का साथ मंगल जई को मिल रहा है शान मसूद की सूरत में, या जो हसीबुल्लाह हैं उनको असद शफीक की सूरत में पार्टनर मिल रहा है, सीनियर पार्टनर उसकी कमी महसूस हो रही है हसन नवाज को, क्योंकि बैटिंग भी एक आर्ट है, ये आप सीखते हैं आपके सामने जो खेल रहा होता है उससे भी, उस हाव भाव से भी। या डेफिनेटली, और शायद वो रोल उमर अमीन निभा सकते हैं। आई एम श्योर अगले आने वाले मैचेस में हम उनको एक्शन में देखेंगे। गुड बॉल। और ये नॉर्दर्न क्रिकेट के साथ है मसला पिछले कई बरस से कि इनके टॉप ऑर्डर में सलाहियत की कभी कमी नहीं रही, लेकिन ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता दोनों एंड्स पर, और उसी वजह से खिलाड़ी आते हैं, कुछ रन्स बनाते हैं, लेकिन फिर वो ठहर नहीं पाते टीमों में। जैसे रद्दोबदल इनके होता रहता है, इनकी जो बैटिंग की चोटी है। इस ओवर में बिल्कुल खामोश रखा माज खान ने, उम्दा बॉलिंग लेग स्पिनर की 62 पर 3। Good ball. Turning out to be a tight contest. Run making hasn't been easy. First half of the innings only yielding 62 runs with 3 wickets. The required run rate already up above 9. A bit of confusion. Rohail Nazir has got the opportunity, missed out in the first game. Yorked himself. He swept that well. He'll find the fielder down there. Again, the chasing side is in the position where they're now looking at 10 and over for 10 overs. They still need 96 more, 57. You lose a wicket, you will further dig a hole. But Khalid Usman, tell you what, he's been immaculate. He came on to bowl in the power play. And he made sure that he slows things down, and he has in his 4th over, 2 for 12 at the moment. The deep cover fielder has been brought slightly straighter, more towards extra cover. Realizing there's not much force off the back foot because of lack of pace, difficult to play behind square. Move that fielder across. Full toss, and he'll have to pay the price for so important to finish the over well. Now it's 7 of the over, 69 for 3.
10.11 in the remaining 9 overs. That's the required rate. Two very capable batters. Wicket is really not conducive to free-flowing batting. Have to come up with different plans. They have to run hard between the wickets. Collect plenty of runs through their running between the wickets. Good ball. Easy shot. That last boundary came after 29 deliveries. That's almost 5 overs. It's a quarter of the innings of a T20 innings. Stranglehold by the KP spinners. He almost yoked himself. Mars has been good as well. Spliting it, not shying away. None for 9 in his 3rd over. That's very economical. And he's got hold of that. The sound of it tells you don't have to look where it lands or ends. Right underneath that, and he's given it a full swing. As soon as he struck the ball, put his head down and walked away from action, he knew he hit the sweet part. That sound of the bat is absolutely cracking. Down on one knee, with his sore into the stands, breaking the shackles. The skipper, you can talk a good game, just about time to play a good game. This is what Ali Imran is expected to do. Yeah, and they're running hard for the second. The throw has to be good. No, the slight fumble allows them to easily complete the couple. And Northern needs a couple of good overs here to just pull that required run rate back within reach. It's 9.7 at the moment. This over is looking good for them. 10 already of the 4 deliveries. Good ball, good ball. That's important. Hitting the gaps and running hard. Got the boundary. More importantly, they made sure they're making use of every delivery. They've done that in this over. Good ball, good ball. Imran wanted the second, Rohail didn't. Wow, what was that? That reminded me of Waqar Yunus. That's like a bouncer. Sometimes you grip it too hard and you just don't release the ball in time. He's banged it almost around his own toe. A wide. Swept hard once again. Boundary. That's a big over. It's one of those they were looking for. 16 of it. 85 for 3. It's exactly what you asked at the beginning of the over, Sikandar. A big over to bring the equation back in their favor. Couple of real loose deliveries. Took full toll by Rohail and Ali Imran. Strong blow. Really solid base. Took the ball way out in front. That allowed him to hit it in front of square and generate power to beat the 2 sweepers. .38 required in the last 8 overs. Got a bit of a crowd today. Stands towards our right where the sun is setting now, and there's some shady stands with shade that's been taken up under the flag of the Northern. And this is Kingdom Valley, a royal lifestyle. Get onto their official Facebook page for more information and wins a lot of surprises. And you can be the new king. There's only one king. But
everyone has an opportunity to beat that one. 17 apiece for the two batters. Kamran Ghulam, more spin. Played away a single off the first. .31 T20s, 4 for 11 is best. Can he repeat something like that? Or ball in a very economical spell, whatever he bowls. Nicely done. Kept the ball coming at the batsman. I mean, he saw him coming down. Ramp him up for space. On ball. It's really good tactics by KP. They've read the wicket and they think spin is the name of the game from here on in. And bring out their part-time resource as well in Kamran Ghulam. Good ball. He's chased a wide one, finally getting some bat. Good start from Kamran Ghulam. Good first over up till now, just two of it. More deliveries. Now Ali Imran is searching for that shot. They don't mind the singles, as long as the boundaries are not coming, KP. Busy man, marshalling his men. Kamran Ghulam. Saw him making room, bowls it wide. That's well done. Just 3 of the over. 13 gone, 88 for 3. Wide play happening. Haris, as soon as he took the ball, he ran away from the action, suggesting that it was a legitimate delivery. Ruhail Nazir was perplexed. He thought it was a wide delivery. Kamran Ghulam. It'd be an interesting replay to say, because umpire was suggesting he ran right across him, which means that he couldn't see the action. But then he can call him for running on the wicket. We have to see. 7 overs to go. That run rate has once again jumped up above 10. This is the strength of KPK when they see the opportunity to really tighten the screws here. Kamran Ghulam got through his over very, very quickly. Yeah, lots happened in the last ball. They were asking for a wide, but here Kamran Ghulam blocking umpire Faisal Afridi's view. Left arm over, bowling change. Could Faisal Afridi see up above Kamran Ghulam, because he's not a tall man. Faisal Afridi is. I thought it was mandatory for a while that when a medium pacer or a fast bowler is bowling, you've got to have protection, you have to wear a helmet. Now the helmet is coming for Ruhail. Because on the first ball he was standing a non-striker without even a cap. Not allowed to face a fast bowler without a helmet. Shinwari would be hoping he doesn't have to put the pads on. He's bowled well for the 3 wickets he took today. 3 all in 1 over. Some faces. Samiullah Niazi, the bowling coach.
slower one, and is nicely picked up by Ruhail Nazir for a boundary. Fast bowling is not really the thing to go with at the moment, it seems like. And although Imran relies very heavily on his cutters, but Ruhail Nazir picked that one nicely. Nice and early, and picked his spot as well. That's the advantage of having a partnership. These two have been in the middle for quite some time now. They gauge the pace of the pitch, and that's why this is very, very crucial for them to continue for a little longer. Take this run chase deep into the innings. Partnership of 40 of just 31 deliveries. Again, these two are looking good. They're getting that odd boundary going, and they are running well between the wickets. They extracted some good runs in the past 3 or 4 overs, except for the Kamran Ghulam over, the previous one got them just 3. In this one, they've extracted a boundary. Can they pull something off out of the remaining 3 deliveries in the over? The required is still asking for 10 and above. Again, pushing it hard, putting pressure on the fielders. Good running for Ali Imran and Ruhail Nazir. But a delayed decision to go for that second run. Look at them, they're just ambling, realizing Amir Azmat was a bit slow off the mark. Really had to put the skates on Ali Imran. He's a tall boy, covered the area quite quickly. That's good, smart cricket from Northern. That equation of 10 and over only requires them to hit 1 boundary. They can make use of every other ball and easily get to that equation. It's the way the modern day batters look at these situations. They've already got 8 of the over with 2 to go. So it'll stop and play at the moment. Is that a short run? Oh no, he's good. Yeah, that's in by a margin. That's touching the grass, and that's inside. I guess all will be satisfied with that replay. Reversing that signal. Right decision made eventually. Remember, each and every run is vitally important here. This can go down to the wire if this partnership continues for another 2 to 3 overs. As they're getting closer with another 6 overs to go, then 10 and over becomes easier and easier as you're getting closer. It's always tough to maintain higher required run rates for a longer period of time. So they've done a good job starting from over number 11 to over number 14, keeping up with the pace, Ruhail and Ali Imran. Last ball, 9 of the over. They've got to finish well. Ball toss in the air, but will just get a single. So exactly 10. 14 gone, 98 for 3. The way KP does their exercise with the ball, they leave themselves with plenty of options towards the end. Last 6 overs to go. All but Khalid Usman
have still overs left, so Khalid can call upon plenty of resources. Imran Khan Senior, as was the case the other day, was expensive in his first 2 overs. We all know what he can do with that old ball. Imran Ghulam is getting ready to start another over. Bowled a cheap over, none for 3 of his first over. I said people have turned up today as the evening has set in. It's a little bit cooler. A selfie is not too far away when you're at these games. Kamran's first over was just 3 runs. If he bowls another good one here, he can add that pressure on. But this is a very crucial stage of this innings, of this chase. A good over here can force the batsman to make a mistake. Oh, it's so good. It's always so important, even at a stage like this, as a bowler, you need to just talk to yourself at the top of your mark. Don't rush things. Make sure what is the batsman doing and what you want to bowl, without getting too predictable. They're rushing. They want the second one. Fielders are deep. Throw has to be good. They come back for 2. 2 dot balls. Imran realizing the need. A couple of runs. Decisive running once again. 100 has been brought up in the meantime, but what I was talking about with 10 and over, a boundary and over is the simple equation. And the sooner that boundary comes in the over, it releases the pressure on the batters. 3 deliveries, no boundary yet. Almost. Clever piece of bowling from Kamran Ghulam. He saw Ali Imran coming, threw the ball wide, barely got the bottom edge of the bat, and it didn't set into Haris's gloves. Not an easy chance at all. And that's cheap over, just 3 runs of the first 5 deliveries, and that boundary hasn't come in this over for the first 5 deliveries. It wasn't really Haris's fault, the keeper. The ball deflected off the bat and hit him on the thigh. Otherwise, there was no way Ali Imran would have been able to get back into the crease in time. When you see what a good over does, it's 11.4 now required. And he goes big. Chance or not? Taken. It forces the batsman to make a mistake or do something out of his comfort zone. And Kamran Ghulam is rewarded with 2 good overs. Finally, the partnership is broken right now. And that is the end of the captain. He realized that need for the boundary in the over, which hadn't come in the first 5 deliveries. He was forcing the issue. Found Sabzada Farhan lurking in the deep. Kamran Ghulam delighted. A timely breakthrough as the important partnership has been broken. Ali Imran, rather Ruhail Nazir, walks back for 23. Northern 101 for 4. रणवीर नए खिलाड़ी जो मैदान में उतरे हैं. अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी जो ऐसा टीम को जीत की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन बड़े यहाँ मौके पर ये विकेट गिर गई. रुहाइल नज़ीर अच्छी बैटिंग कर रहे थे. 48 रन की पार्टनरशिप हुई और के बाद कामरान ने विकेट हासिल की. ज़्यादा तेज बॉलिंग नहीं करते हैं कामरान. आज भी नंबर 6 पर आए हैं खेलने के लिए और इनके खेलने का तरीका हमेशा से एक सा ही रहा है. लेग साइड में लॉन्ग ऑन से मिड विकेट के इलाके में अगर गेंद पैड्स में आ जाए तो स्क्वायर लेग तक इनकी रेंज है. इससे इतनी आसानी से हिट लगने नहीं देंगे, ख़ास तौर पर खालिद उस्मान के पास जो पेसर्स हैं
माने हुए हैं इस तरह की सूरत हाल से जहां तक निपटने का ताल्लुक है। अलबत्ता अली इमरान ये ऑलराउंड खेल सकते हैं, उनके लिए 3 फील्डर दायरे में हैं। एक फील्डर को डीप पॉइंट पर लाया गया, एक पासी बिल्कुल डीप थर्ड मैन पर है, डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट से पुल कर दिया। 4 रन के लिए कतई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि शॉर्ट गेंद अक्सर देखा गया है तारने वाला साबित होती है। दराज कद अली इमरान के सामने बहुत जल्दी बैकफुट पे जाते हैं और हल्का सा पीछे हटे थे शायद कवर पे खेलने के लिए, और उसी वजह से लेंथ चेंज की अरशद इकबाल ने। गेंद पुराना हो गया है, इस लेंथ पे अगर इस पेस से आप गेंद करेंगे तो महंगे साबित होंगे। ये कीमती रन हैं। इस वक्त अली को फिर से एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी सुहेल तनवीर के साथ, क्योंकि मुश्किल नहीं होना चाहिए। 52 रन दरकार है, बैटिंग अभी भी बहुत है। देखना यह है कि अब रद्द अमल क्या होगा। अरशद इकबाल का अली इमरान को फॉलो करने चले गए थे, कोशिश यही करनी चाहिए कि विकेटों में बॉलिंग करें। ऑफ साइड में इनको हिट करना इतना आसान होगा नहीं। अच्छी डिलीवरी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। 26 गेंदों में 53 रन की जरूरत है। रन औसत बढ़ती जा रही है 12.2 की। इसी हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए, और इसी वजह से एजाज अहमद बेचैन हैं, जो हेड कोच हैं नॉर्दर्न के। पहले मैच में इनकी टीम हार चुकी है। अली इमरान ने पिछली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये ज़रूर कहा था कि एंड के ओवर्स में इस तरह की ग्राउंड और सरफेस पे 10-11 की एवरेज बड़ी नहीं होती। और ऐसे उठा खेला, फील्डर आ रहे हैं कैच लेने के लिए, और एक और विकेट यहां पर केपी हुई। अरशद इकबाल, जिनके खिलाफ इससे पहले इसी ओवर में बाउंड्री लगाई थी अली इमरान ने, मिड विकेट के ऊपर से खेलने चले गए। ज्यादा फासला तय नहीं कर सके अली इमरान। आहिस्ता गेंद थी, यही वजह है कि इसने आखिर में हाथों में बसेरा किया जाकर आमिर अजमत के। मुश्किल बढ़ती जा रही है, और एलिवेशन जरूर मिल गई थी, लेकिन बॉल जो है वो बाउंस हासिल करता जा रहा था। अली इमरान कप्तान को वापस जाना पड़ेगा। नॉर्दर्न को एक और झटका, 107 पे 5 आउट। आमिर जमाल इनकी टीम में होने की वजह इनकी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी है। के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये बैटिंग का हाथ बढ़ा सकते हैं। 25 की औसत है, अच्छा स्ट्राइक रेट है, लेकिन इस वक्त नॉन स्ट्राइकर होंगे क्योंकि खिलाड़ी एक दूसरे के पास से गुजर गए थे कैच के वक्त। सुहेल तनवीर जो हैं, इनको भी आज इंसाफ करना चाहिए। नंबर 6 की पोजीशन से और अपने कद काट से बड़ा नाम एक समझे जाते हैं। ये देखिए आहिस्ता गेंद थी, कटर फेंका था, इसलिए पूरी तरह बल्ले पर आई नहीं। ज्यादा टाइम करने चले गए, बहुत ज्यादा कुव्वत भी सर्फ नहीं की अली इमरान ने। बिल्कुल, जब स्लोअर बॉल होता है तो आपको ज्यादा अपनी जान लगानी पड़ती है, और इसमें आप टाइम करके एलिवेटेड शॉट नहीं खेल सकते। बल्ले का रुख भी ऊपर की तरफ था, थोड़ा चिपटे बैट से खेलते तो शायद बाउंड्री के पार जाती। हसन नवाज बहुत अच्छा खेल रहे थे जब तक ये विकेट पर मौजूद थे, तो लग रहा था कि वन वे ट्रैफिक चल रही है, लेकिन यूं ही खालिद उस्मान ने इनकी विकेट हासिल की, उसके बाद मैच का हुलिया ही बदल गया। अरशद इकबाल साथ दूसरे एंड पर इमरान खान सीनियर होंगे, जिन्होंने कल तहलका मचाया था सेंट्रल पंजाब की। इन्होंने मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। कल ज़्यादातर
शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की इनटू द पिच। देखना ये कि आज किस लेंथ का इंतखाब करते हैं। बल्ले और पैड दोनों पे लगी, इससे रन हासिल किया जो खतरे से खाली नहीं था। ऐसे रन लेने पड़ेंगे क्योंकि अगर बाउंड्रीज नहीं आ रही तो एटलीस्ट सिंगल्स या डबल की तरफ जाना पड़ेगा। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन अच्छी गेंदबाजी इमरान खान सीनियर की। बिल्कुल गिव अप कर दिया था, अगर ये विकेटों को लग जाता तो सीधा ही चलते बनते। लेकिन एक बड़ा ओवर अगर नॉर्दर्न को इस टाइम मिल जाता है तो थोड़ा सा उनकी फेवर में चीजें जा सकती हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। केपी की डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी है। ये साए लंबे होते जा रहे हैं और गहरे भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और नॉर्दर्न की बैटिंग पर भी अब साए गहरे होने लगे हैं। दूसरे 2 पॉइंट्स की फिक्र सता रही है। यहाँ शॉट गेंद करने की कोशिश की लेकिन ये टॉप है। 4 रन मिल जाएंगे आमिर जमाल को। इस वक्त रन चाहिए हैं, अगर विकेट के सामने नहीं मिलते तो कोई मजायका नहीं कि विकेट कीपर के पीछे से आ जाए। ऑप्शन बुरी नहीं थी, बाउंसर करना चाह रहे थे, फील्ड भी उस हिसाब से थी, लेकिन थोड़ा सा जो लाइन है उसकी वजह से ये बहुत फाइन कैरी कर गया। बाउंस भी उनको मिल गया था। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पे है। अमूमी तौर पे यही टारगेट करेंगे कि शॉर्ट पिच डिलीवरी कराएं और कैचेस में अपने फील्डर्स को इंटरेस्टेड रख सकें। ओवर के शुरू में दरअसल हर ओवर के शुरू में इनको 1-2 बाउंड्रीज दरकार होंगी खेल में रहने के लिए। इस बार भी हिट सही तरह से कर नहीं सके, हार्ड लेंथ को हिट कर रहे हैं। बड़े तजुर्बेकार माने हुए बॉलर इमरान खान सीनियर, जिन्होंने ऑफ लेट इस वाइट बॉल क्रिकेट T20 में भी अपनी हैसियत को मनवाया है। मुल्तान सुल्तान को इन्होंने ट्रॉफी के चैंपियन बनवाया था। PSL 6 में मुत्तहदा अरब इमारात में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके बाद इन्होंने फिर अपनी धाक बिठाई नेशनल T20 कप 2021 में, वहाँ पर भी चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने। स्लो बॉल बाउंसर, बैट्समैन जरूर सरप्राइज हुए लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। कोशिश इनकी ज़्यादातर होगी कि अगर सुहेल तनवीर को सिंगल दे के ऑफ स्ट्राइक रखा जाए और आमिर को एक्सपोज किया जाए, जब सिर्फ 5 रन बना पाए हैं। और ये प्लान यही लग रहा है शॉर्ट डिलीवरी पे रखे, क्योंकि सुहेल तनवीर भी जो लेंथ की गेंद है और कोई भी विद इन स्टंप्स या पैड्स पे आती है उसको बहुत लंबा मारते हैं। लेकिन क्या ये उनसे दूर गेंद करेंगे ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि थर्ड मैन पर 2 फील्डर दायरे के अंदर हैं। और ये खराब लाइन, खराब लेंथ और उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। सुहेल तनवीर इस लेंथ के लिए पहले ही तैयार थे लेकिन जो ही गेंद उनके पाले में रही अपने बल्ले को स्विंग कर दिया। इसी लेंथ की मैं बात कर रही थी। बहुत टाइम मिल जाता है पुराने गेंद से जब ये आइडियल लेंथ होती है किसी भी बैटर के लिए, स्पेशली स्लॉगर जो तेज बल्ले को घुमाते हैं। या तो सर के ऊपर से जानी चाहिए या आप यॉर्कर लेंथ पे करें या बहुत ही कम पेस रखें क्योंकि ज़बरदस्ती शॉट मारने जाएं। शायद ये फील्ड जो है ये बेहतर नहीं है। ऑफ साइड में ये थर्ड मैन के एक फील्डर को पीछे भेज सकते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करनी चाहिए सुहेल तनवीर को, क्योंकि आमतौर पर वो यकतरफा ही हिटिंग करते हैं, लेग साइड में ही अपना बल्ला ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी तक वही फील्ड है। स्टंप्स में यॉर्कर किया, 1 रन मिल सकेगा, पहुंच जाएंगे। यहाँ सरवर आफरीदी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। चौदह रन आ चुके हैं इस ओवर में, 1 गेंद बाकी है। रन्स की ताक में थे, इस ओवर में आ गए हैं। अब आखिरी गेंद क्या करेंगे इमरान खान की कोशिश ही होगी कि डॉट डिलीवरी पे जाएं। फील्डिंग में थोड़ा रद्दोबदल किया जा रहा है। डीप स्क्वायर लेग को आगे बुलाया।
और थर्ड मैन को पीछे भेज दिया है। कोशिश ही होगी कि आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड यॉर्कर करें या फिर ये स्लोअर गेम कर सकते हैं, क्योंकि डीप मिड विकेट भी है, लॉन्ग ऑन के फील्डर भी हैं इस वक्त। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को अब सीधा कर दिया गया। ऐसे में यॉर्कर स्टंप्स की लाइन में भी कर सकते हैं। वाइड यॉर्कर का इंतखाब किया। महंगा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा इमरान खान सीनियर का, जिसमें 14 रन्स बने विकेट के बावजूद, और ये नो बॉल। अंपायर का ये ख्याल है कि जो दायरे के अंदर जो है क्या ये 4 फील्डर से कम थे। अंपायर का यही ख्याल है फैसल अफरीदी का, क्योंकि 5 फील्डर का दायरे के बाहर होना जरूरी है। फाइन लेग के फील्डर ने शायद थोड़ी देर कर दी सर्कल के अंदर फिनिश करने में, तब तक गेंद डिलीवर हो गया था यहाँ। लेकिन यहाँ अंपायर को दाद मिलनी चाहिए। गहरी नजर थी स्क्वायर लेग पर नासिर हुसैन की, उन्हें फौरन मुत्तला कर दिया फैसल अफरीदी को। ये फ्री हिट है, शॉट सीधा फील्डर के पास खेले, फायदा नहीं उठा सके आमिर। अब ऑफिशियली ये ओवर खत्म हुआ 123 पे 5। नॉर्दर्न की टीम अभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। सुहेल तनवीर और आमिर इस बात की कोशिश कर रहे हैं इस मैच को डीप ले जाया जाए आखिरी ओवर की तरफ। खूबसूरत यॉर्कर था, कोई मौका नहीं था सिवाय इसके कि इसे डिग आउट करते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही रन ऐसी गेंद पर बन सकता है इस मरहले पर। इक्वेशन को ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सुहेल तनवीर और आमिर जब तक मौजूद हैं, बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि अगर अच्छी बॉल है तो उस पर आप सिंगल की तरफ जाएं, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती शॉट बनाने जाएं। कहीं ना कहीं केपी के बॉलर्स कोई बाउंड्री ऑप्शन वाली डिलीवरी ज़रूर देंगे, उसका बस फ़ायदा उठाना है। बहुत लंबे रन अब से आ रहे हैं अरशद इकबाल। दोनों मैचों में उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की। आखिरी ओवर है उनका आज के दिन का। लेग साइड में खेला। अंपायर जो हैं वो मुतमिन नहीं है, क्योंकि जो अंपायर ने बैट्समैन को भी मुत्तला किया है कि वो विकेट के ऊपर दौड़ने से बाज रहे हैं डेंजर एरिया में। ये बिल्कुल आमिर जमाल जो हैं ये सामने भागते हुए आए थे, और उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि अरशद इकबाल उनके रास्ते में खड़े थे तो उन्हें बदलना पड़ा अपना रास्ता। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। एक रन जो है इसकी फिक्र नहीं है नॉर्दर्न कप्तान खालिद उस्मान को, क्योंकि अगर ये ओवर बाउंड्री लेस गया तो फिर नॉर्दर्न की टीम और ज़्यादा दीवार से लग जाएगी। लेकिन यहाँ सुहेल तनवीर जो हैं ये खेल को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी 2 ओवर्स में टीम को 27-28 रन दरकार हों, ताकि उस वक्त जो बॉलर हैं वो भी दबाव में हों। फुल टॉस अगेन गैप में चली है, क्या फील्डर रोक सकेंगे? जी नहीं, डाइव जरूर की आमिर अजमत ने, लेकिन
ये अच्छा शॉट खेला, दाग दिया आमिर ने। ऐसे गेंद जमीन से लगी गई तेजी के साथ। भरपूर फायदा उठाया इस लूज डिलीवरी का। यॉर्कर करना चाह रहे थे शायद, लेकिन मिस कर दी लेंथ। और यही वो मौके हैं जिसका नॉर्दर्न को मौका, जिसका फायदा उठाना है। 4 रन हासिल किए, 3 सिंगल्स ऑलरेडी आ गए हुए थे और अब प्रेशर जो है वो वापस केपी के ऊपर है। 14 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। 5 विकेटें हाथ में हैं तो ये रन बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी टीम ने रन चेज में कामयाबी हासिल नहीं की है। ये छठा मैच है इस चैंपियनशिप का। और पुल शॉट खेल दिया और गेंद एक बार फिर 2 फील्डर्स के दरमियान से निकल गई। पहले लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान, अब मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान। तो ये लेग साइड का इलाका खासा 12 ओवर साबित हो रहा है आमिर जमाल के लिए। और नॉर्दर्न की टीम मजीद करीब आती हुई अपने हदफ के। 11 रन आ चुके हैं, 1 डिलीवरी बाकी है। पिछला फुल टॉस हुआ था इसलिए उसको ओवर कंपनसेट करने चले गए अरशद इकबाल। और इस किस्म की डिलीवरी इस टाइम पे करना जो है वो जुर्म से खाली नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। आमिर और सुहेल दोनों ये सलाहियत रखते हैं कि नॉर्दर्न को ये मैच जितवा सकें। यहाँ ये वो मरहला होता है जब सूरत हाल में सस्पेंस आने लगता है। अच्छा खत्म किया इस ओवर को अरशद इकबाल ने। इसके साथ ही उनके आज के दिन का कोटा भी मुकम्मल हो गया। 4 ओवर्स का अच्छी कारकर्दगी रही पेसर की, 134 पे 5। इमरान खान सीनियर का 1 ओवर है, वो इस इनिंग्स का यही पेनल्टीमेट ओवर करेंगे और उसके बाद आखिरी ओवर के लिए इमरान जूनियर को ही यकीनी तौर पर लाया जाएगा। स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। खालिद उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की अपनी टीम के लिए। टीम को फ्रंट से लीड किया कप्तान ने। ये अटैक लीडर हैं इमरान खान सीनियर, 12 इस सबूत दे चुके हैं। खासा वक्त ले रहे हैं। तकरीबन 35-36 गज दूर से भागना शुरू करते हैं फार एंड से। और अच्छा खेला, क्लियर किया स्क्वायर लेग के फील्डर को और उसके बाद बाउंड्री को भी। 4 अनमोल रन्स नॉर्दर्न के लिए। तो बाउंड्रीज आने लगी हैं दिन के इस आखिरी पहर में नॉर्दर्न के लिए। बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज किया सुहेल तनवीर ने और यही वो तजर्बा है जो काम आ रहा है उनके। आउटसाइड ऑफ स्टंप, गेंद बुरी नहीं थी, 5वीं स्टंप पे गिरी हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा फैच करके एंगल किया गैप में और पहली बॉल पे बाउंड्री हासिल कर ली है। इमरान खान सीनियर अक्सर अच्छी डेथ बॉलिंग करते हैं, लेकिन अब ये इक्वेशन और टाइट होती जा रही है। तो एक हर निगाह में एक उम्मीद उठने लगी है इस वक्त नॉर्दर्न की। जहां तक सपोर्टर्स का सवाल है, ये वाइड गेंद, क्योंकि थर्ड मैन अब पीछे है, अब ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करना चाहते हैं। ये बुरी लाइन नहीं है, लेकिन जाहिर आप इतना बाहर नहीं जा सकते ऑफ स्टंप के। बिल्कुल इरादा इनका ये था, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं अच्छी कर पाए। सुहेल तनवीर अक्सर स्टंप्स के बिल्कुल सामने आके आउटसाइड ऑफ स्टंप अगर लेंथ मिल जाए उसको भी एक्स्ट्रा कवर मार देते हैं। तो थोड़ी सी भी चूक हुई अगर इमरान खान सीनियर की जानिब से तो मजीद रन मिल सकते हैं नॉर्दर्न को। फिर वाइड यॉर्कर अटेम्प्ट किया, इस बार खासा आगे निकल गए थे, लेकिन ओवर थ्रो के रन खतरा समझा, इससे थ्रो नहीं की कप्तान खालिद उस्मान ने। ज़हीन और ज़ीरक क्रिकेटर हैं, अपने आसाब पर काबू रखना जानते हैं। हालांकि ये वो मौका होता है जब दिलों की जो धड़कनें होती हैं उनकी गिनती शुरू हो जाती है।
अच्छी एक्सिक्यूशन थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप कर दिया था। शॉट भी अमूमन मारते हैं लेकिन एलिवेशन नहीं मिल पाई क्योंकि लेंथ बहुत आगे थी। अच्छा फॉलो अप बॉल था ये इमरान खान सीनियर का। सुहेल तनवीर क्या स्वीप करने के लिए जाएंगे, फाइनल लेग दायरे में देखा जा सकता है। पछिया से मिड विकेट पर फील्डर हैं, एक ही रन सुहेल बना सके। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अब तक सुहेल तनवीर, और ये दोनों जो पेस बॉलर हैं 33 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं 16 गेंदों में, और एक उम्मीद दिला दी है उन्होंने इस डगआउट को। कुछ देर पहले तक एक मायूसी झलक रही थी इस पूरे खेमे में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल 6 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें बाकी हैं। कोशिश इनकी होगी कि एक और बाउंड्री हासिल कर सकें। पहली बॉल पे इन्होंने बाउंड्री ली थी सुहेल तनवीर ने। आमिर जमाल मौजूद है हमारे पास। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर है, थर्ड मैन भी बाउंड्री पे। ये सूरत हाल जो है ये दोनों ही टीमों के लिए अब एक इम्तिहान बन गई है। और खेला इसे, फाइनल लेग के फील्डर ने हाथ बढ़ाकर इस कैच को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका मौका नहीं था। इम्प्रोवाइज किया, बड़ा अच्छा हाथ दिखाया अब तक आमिर जमाल ने इस मुश्किल सूरत हाल में। वो बड़ी उम्दा पार्टनरशिप करने में कामयाब हो रहे हैं सुहेल तनवीर के साथ। गेंद अच्छा था, आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुल लेंथ थी, लेकिन थोड़ा सा आपको एज देना पड़ेगा हाजिर दिमागी का। आमिर जमाल ने बहुत अच्छी फील्ड रीड की हुई थी और कुछ किस्मत भी उनका साथ दे रही है। एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए, और यही वो बाउंड्री थी जिसकी इनको तलाश थी। कोशिश होगी इनकी कि कम से कम रन आखिरी ओवर के लिए रखे जाएं। एक गेंद, 2 गेंदें और बाकी, और प्रेशर साफ नजर आ रहा है केपी पे। पिछला ओवर खासा महंगा रहा, इस ओवर में भी अब तक 10 रन इमरान दे चुके हैं, और अगर ये विकेट हासिल नहीं कर सके ये बाकी मात्रा 2 गेंदों में, तो फिर फेवरेट हो सकती यहाँ पर नॉर्दर्न की टीम। 8 गेंदों में 16 रन दरकार हैं। रिवर्स शॉट खेलने के लिए गए आमिर, लेकिन रब्त हुआ नहीं गेंद और बल्ले के दरमियान। मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इस ओवर में पहले चौका लगा, रवानी नॉर्दर्न के साथ थी। अगली गेंद जो खाली गई वापस आ गई पूरी तरह खेल में केपी की टीम। अच्छा सा चेंज ऑफ पेस किया इमरान खान सीनियर ने। थर्ड मैन अंदर है और लेग साइड पे काफ़ी प्रोटेक्शन है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कवर एरिया। कोशिश करेंगे कि एक और बाउंड्री के लिए अगर जाएं, जो कि जाना चाहिए आमिर को। काफ़ी डिस्कशन चल रही है खालिद उस्मान और इमरान खान सीनियर के दरमियान, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बॉल होने वाली है। बड़ा सख्त मुकाबला, कांटे का मैच खेला जा रहा है इस वक्त पिंडी की पिच पर। स्वीप किया, इसको लगे फील्डर आएंगे प्ले में। एक रन यहाँ पर बन सका आउट। क्रिकेट काबिल तारीफ है। नॉर्दर्न की आदिल अमीन थे फील्डर, जिनने एक से ज्यादा नहीं बनने दिया। इमरान का स्पेल खत्म हो गया। 145 नॉर्दर्न, 5 खिलाड़ी आउट और आखिरी ओवर में 15 रन बाकी हैं।
24 घंटे पहले भी यही सूरत हाल थी सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। इमरान जूनियर आखिरी ओवर करने के लिए आए थे, लेकिन उसको रन ज्यादा चाहिए थे। यहाँ 15 रन ये बनाए जा सकते हैं। फील्डिंग इस वक्त सेट की जा रही है। डीप फाइन लेग है ऑन साइड में, मिड ऑन। फील्डर भी बाउंड्री लाइन पर हैं। लॉन्ग ऑफ, इसके अलावा डीप पॉइंट और उठाने में कामयाब हुए। फील्डर देखते रह गए और जोरदार छक्का आमिर जमाल का इस ओवर का शानदार आगाज किया। 150 रन भी नॉर्दर्न ने मुकम्मल किए और अब सिर्फ 2 स्ट्रोक के फासले पर होम टीम अपने पहले 2 पॉइंट से। कमाल की बैटिंग है, अपनी नर्व पे कंट्रोल रखा, लेकिन ये लेंथ और लाइन कह सकते हैं इसने मदद जरूर की ये शॉट खेलने में। काफी डीप खड़े थे क्रीज में, टारगेट कर रहे थे कि कुछ भी विद इन स्टंप्स आया उस पर अपना बल्ला घुमाएंगे और काफी करीब लेके जा रहे हैं जीत के करीब नॉर्दर्न को। पहली बॉल पे छक्का, अब प्रेशर इमरान जूनियर पे। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ आखिरी ओवर में 18 रन इनको बचाना थे, लेकिन आखिरी विकेट थी। क्या यहाँ पर ये बिसात पलट सकते हैं? सलाहियत है इमरान खान में। और फाइनल की जानिब खेलने में कामयाब हुए, लेकिन बाउंड्री बचा ली साहबजादा ने। अच्छी फील्डिंग, इस दबाव में ऐसी फील्डिंग लाजवाब कही जाएगी। कुछ लम्हे के लिए लगा था कि शायद ये बाउंड्री के बाहर चला, लेकिन अच्छी फील्डिंग। बाउंस ऑकवर्ड था, लेकिन साहबजादा फरहान अमूमी तौर पे अच्छी फील्डिंग करते हैं। नॉर्दर्न के लिए अच्छी बात यह है कि सोहेल तनवीर अब आ गए, जो कि जाने जाते हैं लंबे छक्कों के लिए, और केपी ये गलती बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बड़ा ही आसाब शिकन मरहला है, सब कोई गैर यकीनी लगता है। ऐसे में चार गेंदों में 8 रन की जरूरत। अगर यहां पर विकेट गिर जाती है तो फिर जाहिर है कि नए आने वाले बैट्समैन के लिए सामना करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान जो है उनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। और खेला इसे लेग साइड में, गेंद इनसाइड एज होकर चली है। 1 रन बना और सोहेल तनवीर स्ट्राइक से दूर हो गए। दूसरे रन के लिए जाया जा सकता था, लेकिन शायद इरादा यही है कि क्योंकि आमिर के बल्ले पे गेंद आ रहा है, स्ट्राइक अगर उनके पास रहे तो ज़्यादा कामयाबी के चांस है। अच्छी गेंद थी ये, खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन यॉर्कर इस बार परफेक्ट लगा इमरान जूनियर का। फील्डिंग भी लाजवाब, दूसरा रन नहीं लेने दिया। आज तीसरा दिन है इस किंगडम वैली नेशनल T20 कप का, और किसी एक टीम ने भी बाद में बैटिंग करके मैच नहीं जीता है। सुनहरी मौका है नॉर्दर्न के पास, और यहाँ आमिर जमाल के पास कि वो हीरो बनकर निकले। और उठाकर खेला, गैप में खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री बचाने में कामयाब हुए। वहां पर आदिल अमीन थे। 2 रन का मजीद इजाफा। 2 गेंदों में 6 रन चाहिए, एक गेंद पे भी काम हो सकता है। 5 रन चाहिए, 80 करते चलें 2 गेंदों में। काफी टेंस सिचुएशन है, नॉर्दर्न का कैंप काफी उम्मीद से है इस वक्त, और आमिर वापस स्ट्राइक के ऊपर है। हर आंख में एक तजस्सुस है और इन्हमाक की लकीरें देखी जा सकती हैं कप्तान कोचेस के चेहरों पर भी। कोई कुछ नहीं जानता कि अगली 2 गेंदों में क्या होगा। रिवर्स स्वीप करने के लिए गए, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। और अब 1 गेंद बाकी, 4 रन बाकी। वही वो शारजा के मैच की तरह की सूरत हाल है।
जब जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था आखिरी गेंद पर। 4 रन दरकार थे पाकिस्तान को चैंपियन बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया कप का। अच्छी गेंद थी ये, लेकिन शॉट मेरा ख्याल है कि जब आप सामने और मिड विकेट पे लंबा मार सकते हैं तो ये वाली शॉट 2-3 दफ़ा ज़रूर कोशिश की आमिर ने, लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए। अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सुहेल तनवीर क्या आखिरी गेंद पे कुछ जादू कर पाएंगे और नॉर्दर्न को अपनी पहली फतह दिला पाएंगे? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। क्या यॉर्कर करेंगे? क्योंकि अभी तक यही देखा गया, यही डिलीवरी कारगर रही है इन डेथ ओवर्स में। आखिरी गेंद फैसला कून गेंद इस मैच की और यॉर्कर सुहेल तनवीर इसे हिट आउट नहीं कर सके और एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने मैदान मार लिया। उन्होंने बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की ड्रामाई अंदाज में। हालांकि 49 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी सुहेल तनवीर और आमिर जमाल के दरमियान, लेकिन एक बार फिर बेहतर टीम खैबर पख्तूनख्वा जिसने मुसलसल दूसरे दिन कम स्कोर को डिफेंड किया और उनके बॉलर्स ने अपनी बर्तरी साबित कर दी। बहुत ही मिसाली क्रिकेट खेली है खालिद उस्मान ने और उनके खिलाड़ियों ने। लाजवाब आखिरी ओवर। इमरान खान जूनियर पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद बहुत अच्छा कमबैक किया, अपनी नर्व्स पे काबू रखा और एक और कामयाबी हासिल की केपी ने। अच्छी फाइट बैक थी नॉर्दर्न की जानिब से, लेकिन काफ़ी नहीं थी कि उन्हें जीत की तरफ ले जाती। लेकिन दाद देनी पड़ेगी केपी को। ओवरऑल बहुत अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेली इन्होंने, अपनी बैटिंग में भी फील्डिंग अच्छी की और एंड में डेथ बॉलिंग, यही कमाल है। और ये आखिरी डिलीवरी अच्छा यॉर्कर टेल इन कर रहा था, जिसकी वजह से सुहेल तनवीर बिल्कुल भी नहीं रूम बना पाए कि कोई बाउंड्री की तरफ जा पाते और इस तरह एक और कामयाबी केपी के नाम। यहाँ 24 घंटे पहले सेंट्रल पंजाब को इन्होंने ज़्यादातर स्लो बाउंसर्स और इनटू द पिच बॉलिंग करके कामयाबी हासिल की थी। आज इस पिच में उतनी पकड़ नहीं थी, इसलिए यॉर्कर पर इन्हिसार रखा और मुसलसल दूसरी फतह हासिल की खैबर पख्तूनख्वा ने, जो कि दिफाई चैंपियन टीम है इस टूर्नामेंट की। और नॉर्दर्न तकरीबन एक जीता हुआ मैच जो है उनके हाथ से निकल गया। 38 रन बनाए हसन नवाज ने सिर्फ 25 गेंदों में। इब्तिदा उन्होंने अच्छी की, क्योंकि मोहम्मद हुरैरा और नासिर नवाज जल्दी उनका साथ छोड़ गए थे। रोहेल नज़ीर और उनके जो कप्तान है अली इमरान, इनके दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी जिसमें 48 रन बने। लेकिन रोहेल नज़ीर जिस वक्त 27 रन बनाकर आउट हुए कामरान गुलाम की गेंद पर, तो उसके बाद दबाव बढ़ा। अली इमरान भी 29 से आगे नहीं बढ़ सके और सुहेल तनवीर आमिर जमाल की कोशिश आखिर में रायगा गई। नॉर्दर्न को 160 रन की जरूरत थी आज ये कामयाबी हासिल करने के लिए। कल सिंध ने उन्हें शिकस्त दी, आज ओपनिंग पेयर तब्दील हुआ, हुरैरा आए।
खैबर पख्तूनख्वा के जो बॉलर से बाउंड्रीज लगने के बावजूद उनने झुटला दिया उससे, और ये पार्टनरशिप जो 49 रन की रही आखिर में ये नाकाफी साबित हुई। 2 रन से खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने कामयाबी हासिल की और इस तरह पॉइंट्स पोजीशन पर सिंध की तरह उन्होंने भी अपने नाम 4 पॉइंट्स कर लिए हैं। मुबारकबाद और शाबाश की मुस्तहिक है केपी। तो यहाँ मैन ऑफ द मैच की तकरीब आने को है, लेकिन उससे पहले होगा एक वक्फा। नॉर्दर्न बनाम खैबर पख्तूनख्वा, इस मैच का हतमी नतीजा ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 159 रन स्कोर किए खैबर ने। साहबजादा ने निस्फ सेंचुरी बनाई। मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर हैं उनने बड़ी आला इनिंग्स खेली, 33 रन की। मोहम्मद सरवर ने भी अच्छा इख्तिताम किया इस इनिंग्स का। उस्मान शिनवारी और सलमान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया और जवाब में 157 रन स्कोर कर सकी नॉर्दर्न 5 विकेट के नुकसान पर, और 2 रन से वो ये मुकाबला हार गई। तो अब मैन ऑफ द मैच की तकरीब के साथ तैयार हैं सिकंदर बख्त। Thank you so much, Tarek, and we are here for the post-match presentation of Match 6 of Kingdom Valley National T20, and what a cracker of a game. Just a margin. Once again, just 2 runs, and another side batting first wins this match. So the contest between Northern and KP ends with a victory for KP and the valuable 2 points added to them.
Before I call upon the two captains, I'll introduce the presentation party, starting from my right, Mr. Mohammad Waseem, Chief Selector, Pakistan Cricket Board. And next to him is Mr. Sohaib Irfan. He is here on behalf of Kingdom Valley. Welcome, gentlemen. I'd like to call upon the captain of Northern, Ali Imran, to have a few words with us. अली अगेन वही केस है, आई डोंट नो इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि नहीं कि आप पहले बैटिंग करें तो मैच जीतेंगे, लेकिन जब आपकी और रोहिल की पार्टनरशिप थी चेस करते हुए तो लग रहा था कि गेम कंट्रोल में है। जी बिल्कुल, देखें टॉस एक भी मेरे उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड वो इतना मैटर नहीं करता है। बाकी मुझे लग रहा था जब मैं और रोहिल खेल रहे थे कि वहाँ पे हम लोग इजीली चेज़ कर लेंगे, बिकॉज वी बोथ आर गुड रनर्स। हम लोग कैप्स में मार के 2 अच्छा भाग सकते हैं, फिर हम दोनों बड़ी हिट्स मार सकते हैं। तो जहाँ पे एक आधा थोड़े से डॉट्स मेरे से हुए हैं तो रोहिल थोड़ा सा प्रेशर में आया है। मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा हमने कट लूज़ किया और विकेट्स उसकी भी चली गई और बैक टू बैक फिर मैं भी आउट हो गया। अर्लियर इन द मैच अगर जाएँ तो आप लोगों की बॉलिंग अच्छी रही थी, इतना ख़राब नहीं था कुछ भी उसमें, लेकिन ऐसा कहीं फील करते हैं कि जब ग्रिप थी ऑपोजिशन पे तो थोड़े रन ज़्यादा चले गए? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मेरी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह वो रन्स कर रहे थे पहले 10 ओवर्स में, वो बिल्कुल ही फ्रीली जा रहे थे, और जिस तरह हमने कमबैक किया सेकंड हाफ में, तो मैं अपने बॉलर्स को पूरा क्रेडिट दूंगा कि वो वापस आए और हमने उनको बहुत जल्दी रिस्ट्रिक्ट किया। तो 160 वाज अ गुड टोटल ऑन दिस पिच, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आप डिफेंड कर सकते थे। मुझे पूरा बिलीव था कि हम लोग इंशाल्लाह वो चेस कर सकेंगे। पार्ट ऑफ गेम, हार जीत होती है। चलिए, वेल प्लेड। मार्जिन इज 2 runs. It's a loss, but long way to go. Thank you so much. Thank you so much. Now we'll call upon, I'll start with the player of the match. He's the Kingdom Valley player of the match. His performance is 4 overs, 2 for 16, and his contribution with the bat, 19 runs on 14 balls. And the contribution in the context of the game is heavy, and of course leading the side. Khalid Usman, the captain, will receive first the check from Mr. Sohaib Irfan of rupees 25,000 as Kingdom Valley player of the match. And after that, he will now receive this player of the match trophy from Mr. Mohammad Waseem. Brilliant performance from Khalid Usman. He'll take the trophy now. Khalid से बात करते हैं। लग रहा था गेम थोड़ी परेशानी हो गई थी आखिरी कुछ ओवर्स में। इतना यहाँ तक आएगा गेम एक्सपेक्टेशन थी आपकी, क्योंकि ग्रिप तो आपकी अच्छी खासी थी बॉल करते हुए मिड इनिंग्स में? जी बिल्कुल, लेकिन एंड्स के ओवर में थोड़े से रन्स ज़्यादा बन गए। जैसे कि अरशद और इमरान सीनियर बॉलर हैं, लेकिन उनके ओवर्स में रन ज़्यादा बन गए और पार्ट ऑफ गेम है, ये होता रहेगा। अच्छा, हमने देखा है कि 145 करके भी जीत रही हैं टीमें पहले और 190 करके भी जीत रही हैं, तो टॉस जीत के जब आपने बैटिंग ली, क्या स्कोर माइंड में रखा था कि ये गेटेबल है या इस ग्राउंड में इस पे खेल? नहीं, स्कोर हमने मेरे ख्याल से कम किया था, 20-25 रन हम शॉर्ट थे, क्योंकि हमें 11 ओवर में हमारा 100 रन थे और 1 आउट था। तो बीच में शिनवारी का 1 ओवर, उसमें 3 आउट हो गए, तो उधर से कोलैप्स कर गए हम थोड़े से, लेकिन फिर 160 हमने डिपेंडेबल टोटल था। आपकी जो बॉलिंग यूनिट है उसमें आपकी स्ट्रेंथ आपको क्या लगता है कहाँ है? क्योंकि हमने जो ओवरऑल देखा है बाकी टीमों में भी स्पिन ज़्यादा जो है वो कर रही है, यहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इधर बाउंड्रीज भी बड़ी है थोड़ी सी और सामने हिट नहीं लग रही। तो बस यही कहता हूँ, ख़ुद भी जब बॉलिंग करता हूँ कि सामने हिट खाऊँ, और बॉलर्स को भी यही मशवरा देता हूँ मैं। चलिए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर, 2 out of 2। बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग गेम्स। थैंक यू। Khalid Usman, the captain of KP, and that's all from the presentation. यहाँ तीसरा दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और ये सूरत हाल है 3 दिन के बाद। सिंध ने अपने 2 मैचेस खेले, 4 पॉइंट्स हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा के